أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی السلام ورحمۃ آ گئے ہیں آپ، چلیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا پہلا لیکچر 28 ہی ہے نا، کنفرم کر دیں، جی 28 سے لے کے 51 تک، ٹھیک ہے؟ اور جی یہاں سے استاذہ جی فیل شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے سارا اسم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سے فیل جی شروع ہوتا ہے، سب سے پہلا فیل جو ہے وہ ماضی ہے، تو ماضی کے بارے میں ابھی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مضارع اور باقی چیزوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو میں اسکرول ڈاؤن کروں گی، کوشچن آپ کے سامنے ہے، آپ مجھے جواب دیتی جائیں، میں پڑھتی ہوں کوشچن تاکہ جلدی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو جی جملہ فعلیہ میں فعل ماضی ہے موضوع ہمارا، اور اس کا جو پہلا کوشچن ہے وہ یہ ہے، خالی جگہ پر کرے ہوئے فعل وہ کلمہ ہے جس میں کام کا مفہوم ڈیش کے ساتھ پایا جائے، زمانے کے ساتھ پایا جائے۔ زمانے کے ساتھ پایا جائے۔ عربی زبان میں زمانے ڈیش ہیں، عربی زبان میں عربی کتنے زمانے ہیں؟ تین ہے استاذہ، تین ہیں، اور جبکہ تین زمانوں کے لحاظ سے فعل کی ڈیش اقسام ہے، دو اقسام دو ہے۔ دو اقسام ہیں۔ کون کون سی دو اقسام ہیں؟ ماضی اور مضارع۔ ماضی اور مضارع۔ یہاں عربی زبان میں زمانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین، تین کون سی ہیں؟ ماضی، حال، مستقبل۔ ہاں بالکل، باقی اور زبانوں کی طرح زمانے کے لحاظ سے تین ہی قسمیں ہیں، ہر زبان میں یہی ہیں، لیکن جو فعل کی اقسام ہیں وہ دو ہیں، یعنی فعل ماضی اور فعل مضارع ہی ہے۔ امر جو ہے وہ مضارع سے ہی بنتا ہے، اس لیے اس کو شامل نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو کانسیپٹس کو کلیئر کرنا ہے۔ کام کے نام کو ڈیش کہتے ہیں، مصدر ہے کہتے ہیں، ہاں مصدر مصدر کہتے ہیں۔ سوچ کے بولیں، جس کو صحیح جواب آتا ہے وہی دے۔ جملہ فعلیہ وہ مصدر جملہ ہے جو ڈیش سے شروع ہوتا ہے، فعل سے شروع ہوتا عربی میں گردان کو ڈیش کہتے ہیں، تصریف۔ تصریف۔ تصریف، صرفہ یصرف تصریفا، ٹھیک ہے؟ تصریف کہتے ہیں عربی میں گردان کو، گردان جو ہم لکھتے ہیں اس کو تصریف کہتے ہیں۔ ایک مادہ لیتے ہیں اور پھر اس سے ماضی کی گردان بناتے ہیں، پھر مضارع کی گردان بناتے ہیں۔ اچھا، 99.9% جو ہے افعال کا بنیادی مادہ کتنے حروف پر مشتمل ہوتا ہے؟ تین۔ تین پہ۔ باقی جو ہے وہ آپ کا 0.1 جو ہوتا ہے وہ فور والے ہوتے ہیں، ایسے الفاظ۔ ہاں اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں تو فعل مجہول یعنی پیسو وائس کے پہلے حرف پر ہمیشہ ڈیش آتی ہے، پیش پیش آتی ہے، آتی ہے۔ چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو۔ ماضی میں تو ڈیفینیٹلی پیش آتی ہے، مجہول اگر ماضی میں پیش آ جائے تو وہ مجہول ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ مضارع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھے تین ابواب پڑھے جن کے مضارع کے اوپر پیش آ جاتی ہے نا، ماضی میں 4 لیٹر جی ہوتے ہیں تو وہ پیش آ جاتی ہے، تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن ماضی میں اگر آپ کی پیش آ رہی ہے ڈیفینیٹلی وہ مجہول ہوگا، اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر کیا ہے، درست جوابات کا انتخاب کیجئے، ٹھیک ہے؟ فعل مضارع کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ماضی اور مستقبل مستقبل اور سے۔ حال سے۔ نہیں نہیں، مستقبل اور حال سے۔ مستقبل اور حال سے۔ مستقبل اور حال سے تعلق ہوتا ہے، کس کا؟ فعل مضارع۔ ابھی فعل مضارع شروع ہو گیا نا، تو جی فعل مضارع کا تعلق مستقبل اور حال سے ہوتا ہے، یعنی حال کا معنی بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا بھی معنی ہوتا ہے۔ مضارع کا ماضی اور مستقبل سے کیسے ہو سکتا ہے، اور ماضی اور حال سے کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچ کے بولا کریں فوزیہ۔ اچھا، جی میم، گردان، جی بولا تھا میم۔ آپ نے جی صحیح میں نے بولا تھا، دو فوزیہ اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں۔ اچھا، ہاں، تو وہ ایک پٹھانی آواز میں بھی آتی ہے نا تھوڑی، فوزیہ کی آواز۔ گردان مجموعہ ہے، کس کا جملوں مجموعہ کا۔ ہوتا ہے؟ جملے۔ وہ جو گردان میں جو صیغے ہوتے ہیں وہ جملے ہوتے ہیں پورے پورے، اس میں فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، وہ پورا پورا ایک سینٹینس ہوتا ہے، کمپلیٹ سینٹینس، جسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، چاہے اس میں مفعول نہ بھی لگاؤ۔ تو گردان جو ہوتی ہے، چاہے ماضی یا مضارع اور امر ہو، وہ کس کی ہوتی ہے؟ جملوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اسما کا نہیں ہوتی ہے، افعال کا نہیں ہوتی۔ عربی زبان میں ضمائر کی تعداد کتنی ہے؟ 14۔ 14 آپ کے ہیں فنگر ٹپس، اور وہی ہے فعل کے پہلے 3 بنیادی حروف، ٹھیک ہے؟ فعل کے پہلے، یہاں فعل ماضی کر لیں، فعل ماضی کے پہلے 3 بنیادی حروف مادہ یعنی جو ہوتے ہیں
ان کے آخری حرف پر جو حرکت ہمیشہ آتی ہے وہ ہے زبر. ہاں ماضی ہے، یہاں ماضی پر زبر آتی ہے، مضارع پہ پیش آتی ہے. تو یہاں فعل ماضی کے پہلے 3 بنیادی حروف کے، یعنی ماضی کے آخر پہچان کیا ہے، پہلے صیغے کی پہچان خاص طور پہ کہ اس کے آخر میں زبر آتی ہے. اگر آپ نے پہچان کرنی ہو کہ مجھے ماضی کا کون سا صیغہ ہے، تو اگر آخری لیٹر پہ زبر آ رہی ہے تو ماضی کا پہلا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوگا. میں فاسٹ تو نہیں ہوں، ٹھیک جا رہی ہوں میں؟ نہیں ٹھیک ہے. ہاں میں میکسیمم کروانا چاہ رہی ہوں نا کہ ہو جائے، کچھ تو ہو جائے. فعل ماضی کے درمیان والے حرف کی حرکت آئے گی. فعل ماضی کے درمیان والے حرف کی حرکت کیا ہوتی ہے؟ تینوں میں سے کوئی بھی. ہاں کوئی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد عربی میں فعل کے اندر ضمائر ظاہر پہچان ہاں ضمائر پہچاننے کے لیے، یعنی یہ مستتر یہاں پر نہیں لکھا ہوا، انہوں نے کہا ہے کہ ظاہری ضمائر جو ہیں، ایک دو طرح کے ضمائر ہوتے ہیں، ایک مستتر ہوتے ہیں اور ایک بارز ہوتے ہیں. بارز کے لیے ظاہر کا لفظ یوز کیا گیا ہے. تو ضمائر بارز پہچاننے کیے جاتے ہیں، بالکل غلط لکھا ہوا ہے یہاں پہ. اچھا اب آپ مجھے بتائیں، اس کو چھوڑ دیں، سب سے پہلا صیغہ کون سا ہوتا ہے ماضی کا؟ واحد مذکر غائب کا. اس میں کون سی ضمیر واحد. ہوتی ہے، کیسے اس کو لکھیں گے؟ یہاں پہ ڈیش پہ لکھنا ہے، واحد مذکر غائب کا پہلے لکھنا ہے، تو کیا لکھیں گے؟ ہوا لکھیں گے نا استاذ. اس کی ضمیر کو کیسے بتائیں گے؟ جو بھی مستتر ضمیریں ہوتی ہیں نا، ان کی پوری ضمیر لکھی جاتی ہے، چاہے وہ مضارع کی گردان کی مستتر ضمیریں ہوں. مضارع میں 5 ضمیریں جو ہوتی ہیں مستتر ہوتی ہیں، ماضی میں صرف 2 مستتر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو پورا لکھا جاتا ہے، یعنی ضمیر کو ہی لکھا جائے گا. مثلا واحد مذکر غائب میں کیا ہے ضمیر؟ ہوا. ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہ علامت، اس کی علامت نہیں لکھی جائے گی کیونکہ وہ ضمیر ہے. اسی طرح واحد مؤنث غائب جو ہے اس کی بھی آپ ضمیر ہی لکھیں کیونکہ اس میں بھی ضمیر مستتر ہوتی ہے. وہ جو تا ہوتی ہے نا، وہ ضمیر نہیں ہوتی ہے. میں نے کتنی دفعہ بتایا آپ لوگوں کو، تا جو ہوتی ہے مؤنث کی علامت ہوتی ہے، آپ نے وہاں ہیا لکھنا ہے. جو جی ضمیریں غائب ہوتی ہیں، جو مستتر ضمیریں ہوتی ہیں، وہ پہلے اور چوتھے صیغے میں آتی ہیں، اور وہاں پر آپ نے ضمیر کا نام لکھنا ہے. یہاں ہوا لکھیں گے، یہاں پہ ہیا لکھیں گے جی جی مؤنث غائب میں. تا نہیں لکھنا، تا تو مؤنث کی علامت ہے. انہوں نے ضمائر پوچھے ہیں، انہوں نے علامت نہیں پوچھی. اب باقی جو 12 صیغے ہیں ان میں علامت لکھنی ہے، ان میں ضمیر نہیں لکھنی، ان میں علامت لکھنی ہے. مثلا مثنیٰ میں کیا علامت ہوتی ہے؟ الف ہوتی ہے. جمع مذکر غائب میں کیا ہوتی ہے؟ واو ہوتی ہے. مؤنث غائب میں ہیا لکھنی ہے، ٹھیک ہے. مذکر غائب اور مؤنث غائب میں آپ نے ہوا اور ہیا لکھنی ہے مستتر. باقی جو ظاہر ہے ان کی علامت لکھنی ہے، چاہے وہ مضارع کی گردان ہے چاہے وہ ماضی کی گردان ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیں. مستتر ضمیروں کی جگہ پوری پوری ضمیر ہے، جیسے آپ انا لکھتے ہیں، نحنو لکھتے ہیں نا، لکھتے ہیں نا. جی ہاں جی. لیکن وہ اس وقت لکھیں گے جب ضمائر مستتر ہوں گے. جب بارز ہوں گے تو پھر اس وقت آپ نے ان کی علامت لکھنی ہے. اب یہاں پہ جیسے بارز کیا ہے، واحد مؤنث غائب، یہ ہو گیا. مثنیٰ مؤنث غائب کا کیا لکھیں گے؟ نون زبر. نہیں، مثنیٰ ہے نا، مثنیٰ مؤنث غائب. مثنیٰ، جی الف الف. الف لکھیں گے، الف لکھیں گے. جی. جمع مؤنث غائب میں واو. نون زبر. سوچ کے جواب دیں فوزی. اب یہ آپ کے نمبر کٹ جائیں گے پھر یہاں پہ. ویسے بھی آپ نے ٹیسٹ پورے نہیں کیے ہوئے، اور جو ٹیسٹ پورے نہیں کیے ہوئے ان کو ڈپلوما نہیں ملنے والا، سرٹیفکیٹ نہیں ملنے والا، یہ پکا یاد رکھیں. اور جن کے رہتے ہیں تھوڑے بہت 1-2 ٹیسٹ، وہ نیکسٹ ٹیسٹ آنے سے پہلے پہلے کمپلیٹ کر لیں. یعنی ایگزام آنے سے پہلے پہلے وہ 1-2 ٹیسٹ جن کے بھی رہتے ہیں کسی مصروفیت میں، اپنے پورے کریں. آخر کے ہی رہتے ہیں 1-2 کسی کے. تو یہاں پہ آخری یہ میرا بھی ہے. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں جمع مؤنث غائب ہو گیا، نون پہ زبر. واحد مذکر حاضر میں کیا ہوگا؟ واحد مذکر تا. تا. مثنیٰ مذکر حاضر میں تما. جمع مذکر حاضر میں تم. تم. یہ پورا پڑھا کریں، ٹھیک ہے. جمع مذکر غائب تو نہیں لکھا ہوا، کہیں غائب ہوگی تو واو ہوگی، حاضر ہوگی تو تم ہوگی. اور آپ نے انتم نہیں لکھنی.
पूरी जमीर नहीं लिखनी, सिर्फ अलामत लिखनी है। पूरी जमीर कहाँ लिखनी है? जहां पे मुस्ततिर जमीर होगी, पहले और चौथे सीगे में। और मुजारे में 5 सीगों में होती है, तो 5 में लिखी जाती है। अन्ना और नहनु में लिखी जाती है, और अंता भी लिखी जाती है। ठीक है, वहां पे 5 जमीरें लिखी जाती हैं। हुवा लिखी जाती है, हिया लिखी जाती है, अंता लिखी जाती है, अना लिखी जाती है, नहनु। 5 सीगों में मुस्ततिर जमीर होती है। बाकी में सब में बारिज है, वहां पे आपने अलामत लिखनी है। तो उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है? वाहिद मुजक्कर हाजिर हो गया। वाहिद मुअन्नस हाजिर में क्या है? टी ती। मुसन्ना मुअन्नस हाजिर में हुमा तुमा। जमा मुअन्नस हाजिर में तुन्ना तुन्ना। तुन्ना। तुन्ना में क्या लिखेंगे? तुन्ना पूरा लिखेंगे। नून जबर ना लिख दिया तो वो गायब की जी जमीर हो जाएगी। ठीक है, तो जी तुन्ना जी लिखना है, जी तुन्ना नहीं लिखना। इसको अच्छी तरह पक्का कर लें। अनतुन्ना जमीर जी नहीं लिखनी, सिर्फ उसकी अलामत लिखनी है, तुन्ना। वाहिद मुतकल्लिम में अना। अना। तू होती है। ओके, हाँ हाँ हाँ। मैंने तो बताया हाँ ना जी। कि यहाँ पे अलामत लिखनी है। 12 सीगों में जी माजी में सर। अलामत लिखनी है। जी जी और जी मुजारे में 5 सीगों के अंदर आपने जमीर लिखनी है, और बाकी कितने हैं? 9 सीगों में आपने क्या लिखना है? वो आपने अलामत लिखनी है। जी 5 सीगों में आपने कौन कौन से सीगे? हुआ, हिया, अंता, अना, नहनु। 5 सीगों में आपने जमीर लिखनी है। वो मुस्ततिर, यहाँ पे मुस्ततिर जमीर होती है, मुजारे की बात करें। और बाकी सीगों में, 9 सीगों में अलामत लिखनी है। जैसे यहाँ पे जी अलामत लिख रहे हैं ना, वैसे वहां पे भी 9 सीगों जी में, जी यहाँ 12 जी सीगों में अलामत लिखनी है। मैं बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, जी अच्छा, गलतियां नहीं जी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है यहाँ जी। पे? अच्छा, जमा जमा मुअन्नस मुतकल्लिम। हाजिर। हाँ, क्या अंतुन्ना हो गया। वाहिद मुतकल्लिम में अभी आपने अन्ना बताया था। जी अन्ना तू मुजारे आएगा। में लिखना है। अन्ना मुजारे में लिखना है, जी इसमें नहीं लिखना है, इसमें तू लिखना है। और जी जमा उस्ताद साहब। मुतकल्लिम में ना। ना। नून लिखना ना। वाहिद मुजक्कर गायब में हुआ। हुआ। हुआ ये नीचे आ गया, इसको ऊपर होना चाहिए था फर्स्ट पे, लेकिन ये एंड पे लिख जी दिया ना, शायद भूल गया तो एंड पे लिख दिया। तो आपने क्या करना है? यहाँ पे हुआ लिखना है, और चौथे सीगे में हिया, बाकी सबकी अलामतें लिखनी है। और अलामत अनतुमा नहीं लिखी जाएगी, अनतुन्ना अंतुम नहीं लिखी जाएगी, बल्कि सिर्फ आगे का पार्ट लिखा जाएगा। म्यूट करेंगे आप प्लीज? मुझे यही डर था, इतने लोगों को बुलाया था, अभी अब मैं टेंशन हो गई। रोजीना अल्ताफ, चलिए। हम्म तो अगला देखते हैं हम। जलसा की गर्दान करनी है। कौन करेगा जलसा की गर्दान? मैं करूँ उस्ताद साहब। क्विक क्विक, जल्दी। जलस जलसा जलसु जलसत जलसता जलसना जलस्तु जलस्तुमा जलस्तुम जलस्तुम जलस्ति जलस्तुमा जलस्तुन्ना जलस्तु जलसना। समझ आ गई? अब ये माजी की गर्दान है, यहाँ माजी नहीं लिखा हुआ, आपने माजी की लिखनी है जलस से। हाँ, लिखा हुआ है यहाँ पे। गर्दान जब लिखेंगी तो फिर उसमें सिर्फ ही गर्दान ही लिखनी है, और कुछ नहीं लिखना, ना तर्जुमा लिखना है, ना उसके अंदर से वो जमायर बताने हैं। लेकिन जब जमायर पूछे जाएंगे तो फिर दो के अंदर जाहिर बताने और बाकी में अलामत बतानी है। जो इसके अलावा करेगा उसकी गलती मान जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें, क्योंकि तरीका ही यही है ना। टेस्ट 29, इसमें आपका क्या है? ये आपका क्या कह रहे हैं? दिए गए सिरों के फाइल। फाइल क्या है जहाबा में? हुआ। हुआ। हुआ समिया में अलिफ। अलिफ। अलिफ अलिफ बताना है, ठीक है, अलामत बतानी है। दहकत, दहकतू है, ठीक है। इसमें क्या है? फाइल क्या है? नून हु- फाइल क्या है? अना अना। और अन्ना है अना। अभी मैंने क्या पढ़ाया ऊपर? इसमें आपने अलिफ बताया, हुमा तो नहीं बताया ना आपने? बताया मुझे? हुमा बताया? नहीं बताया ना? नहीं नहीं इस पे तू। अलिफ बताया ना? तो यहाँ पे क्या है फिर? यहाँ पे जमीर क्यों बता रहे हैं? अन्ना दहक, दहक तू में क्या है? अना नहीं है, तू है, तू फाइल है। जी अभी यहाँ पे भी ये गलती की थी ना ऊपर आपने।
जब तू लिखा हुआ है तो तू ही फाइल है ना, अना तो नहीं है ना। हम्म ये बात क्यों नहीं समझ आ रही सबको? समझ आई उस्ताद से। हम्म। अना आपने मुजारे में बताना है, क्योंकि वहां पे इस सीगे में जमीर सिर्फ अंदर होती है, सिर्फ अंदर। 5 सीगों में जमीर, 2 सीगों में अंदर बाहर, 3 में सिर्फ अंदर होती है। तो वहां पे आप अंता भी बताते हैं, अन्ना भी बताते हैं, नहनु भी बताते हैं, क्योंकि मुस्ततिर होती है। जैसे हुआ और ये का बताते हैं तो वहां पर उनका बताते हैं। यहाँ पे आपने अलामत बतानी है, यहाँ बताएं। करम तुन्ना में तुन्ना तुन्ना। तुन्ना हाँ, अंतुन्ना नहीं बतानी। शहिद तुम तुम तुम, और इसमें क्या है? फरिहता, जो भी है। अलिफ फरिहता, अलिफ फरिहता। ता मुन्नस ता अलिफ ता अलिफ नहीं बताएंगे मेरी बहनों, सिर्फ अलिफ अलिफ बताएंगे। ता अलिफ मुअन्नस की अलिफ अलामत है, मुअन्नस की अलामत है। ता नहीं अलिफ लिखना, गलत हो जी जाएगा। ता अलिफ सॉरी मैंने कहा सॉरी सिर्फ अलिफ कहें, ठीक है। जलमू में क्या जी है? फाइन वाव वाव है। वाव और इसमें नीचे वाले में अलिफ रहीम तुम अलिफ तुमा नहीं, यहाँ पे अलिफ बताएंगे तो वो तो हुमा बन तुमा जाएगी ना फिर। यहाँ भी अलिफ तुमा हुमा थी ना। तुमा जी जी तो तुमा यहाँ तो उस्ताद। हाँ, यहाँ तो हुमा नहीं है, यहाँ क्या है? तुमा 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 है। अनतुमा नहीं लिखनी, यहाँ पर आपने तुमा जमीर लिखनी है। अच्छा, यहाँ फतहता में क्या है? अंता ता ता क्यों ता अंता ता बता क्यों अंता बता रहे हैं? क्यों अंता बता रहे हैं? ता बताएं ना। आपने सिर्फ मुझे माजी में सिर्फ टेल बताई जाती है। टेल समझती है क्या होता है? दुम। जी जी उस्ताद जी ये माजी है, प्लेन चला गया, आपकी नजरों से ओझल हो गया, उसकी टेल सिर्फ नजर आ रही है आपको। ता, वो ही माजी, उसके अंदर फाइल है। माजी में प्लेन आपकी आंखों से सामने से गुजर गया, सिर्फ टेल नजर आ रही है आपको, वो बतानी है आपने ता। अंता नहीं जी ठीक है बतानी। अंता आपने इंशाल्लाह मुजारे में बतानी है। ठीक है जी अंता, इंशाल्लाह नहनु, अना, नहनु, हुआ, हिया, वो आपने मुजारे में बतानी है, 5 सीगों में सिर्फ। फौजिया, दूसरी वाली फौजिया आपको समझ आ रही है मैंने क्या बोला है? जी जी हाँ, आपको नहीं, दूसरी फौजिया को। जी मैम आ रही है हाँ, मुजारे में 5 जमीरें आपने बतानी है। हुआ, हिया, अंता, जी अना, नहनु। जहां पे जमीर पूछी जाएगी फाइल, वहां पे ये 5 जमीरें लिखनी है, ठीक है। और जी बाकियों की सब अलामात लिखनी है, 9 जमीरों की सिर्फ अलामात लिखनी है। यहाँ पे 12 की अलामात लिखनी है। ता अलामत है, अंता नहीं बोलना। जमीर नहीं पूछी गई, जी अलामत पूछी गई है। शरीफ्ती क्या है यहाँ पे बताइए? टी 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 ती है। और ये क्या है? तुमा तुमा। तुमा कर अच्छा, तुमा हाँ खलकना, ना 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 नसरत, हिया हिया हिया, हिया हिया हिया, ठीक है। जब ये 2 जी सीखे आएंगे ना, पहला और चौथा, तो इनमें क्या होता है? जमीर बताई जाती है। जी जी माजी में सिर्फ पहले 2 सीखे हैं, 12 की अलामत बताएंगे, 2 की आप जमीर बताएंगे। हुआ और हिया। नसरना में अलामत बताएंगे या जमीर बताएंगे? बताएं। नून अलामत अलामत ना बताएंगे, बस ये इतनी सी बात है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं दुरुस्त या गलत का तयन कीजिए। इन्ना का इसम मरफू और खबर मंसूब होती है। वो गलत ये गलत रॉन्ग गलत है। गलत फाइल वो होता है जो उस फेल को अंजाम देता है। फाइल वो होता है जो उस फेल को अंजाम देता है। ठीक गलत ठीक जहाबा ठीक में है हुआ फाइल की सूरत में मौजूद है। सही है दुरुस्त सही है। सही है और इन 2 सीगों में बाहर भी फाइल आ सकता है ना, पहले और चौथे सीगे में। लेकिन हम्म, यहाँ पे अभी वो पूछ रहे हैं कि हुआ ही है। इज़ा के मानी कब के हैं? गलत 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 है। जुमला फेलिया हमेशा फेल से शुरू होता है। सही जी दुरुस्त हाँ, हुआ फाइल के तौर पर मंसूब होता है। गलत 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 फाइल तो मंसूब नहीं होता ना, तो हुआ मर भी फाइल बन रहा मरफू है तो होता है वो मरफू होगा, मंसूब नहीं होगा। तो बस इनको पक्का करे। नंबर तो आपके उसके ऊपर नहीं इंशाल्लाह आएंगे, सर्टिफिकेट के ऊपर, लेकिन जो आपके पास चीज आ जाएगी वो आगे आपको थर्ड जो आप करेंगे उसमें काम आएगी।
तो चीजों को जी पक्का करें, बेस को मजबूत करें। हुआ फाइल के तौर पर मंसूब होता है, गलत है, मरफू होती है। अच्छा, उसके बाद दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। कोई भी फेल मुकम्मल नहीं हो सकता। किसके बगैर कोई भी फेल मुकम्मल नहीं होता? फाइल फाइल के के बगैर। हाँ, बाकी चीजें हो ना हो, फाइल जरूर होना चाहिए फेल का। कोई फेल तो फाइल के बगैर होता ही नहीं। फाइल हमेशा क्या होता है? मरफू, मंसूब, मजरूर। मरफू। मरफू मुतसिल जमायर इस्तेमाल होते हैं। फाइल के लिए फाइल को हम्म, जाहिर फाइल करने के के बाद लिए। फाइल के लिए मरफू फाइल मुतसिल। फाइल फाइल को जाहिर करने के लिए। हाँ, तो ये हुआ जमीर और हिया फाइल को जमीर जाहिर क्या करने होते के हैं? ये मरफू मुत्तसिल जमायर होते हैं, मंसूब लिए। मुत्तसिल नहीं होते, मरफू जी मुत्तसिल जमायर होते हैं। चाहे हुआ हो, चाहे वो अलामत के तौर पे आ रही हो। गर्दान के अंदर जो जमीरें आती हैं ना, चाहे मुजारे की हो, माजी की हो, उसके अंदर जो जमीर होती है वो फाइल बन रही होती है, और वो मरफू मुत्तसिल जमीर होती है। चाहे वो हिडन हो, चाहे वो आपको अलामत के तौर पे नजर आ रही है, वो मरफू मुत्तसिल जमीर है। अच्छा, इस्तेमाल होते हैं किसको जाहिर करने के लिए? फाइल को जाहिर फाइल को करने। जुमले जिनका फाइल हमेशा साथ होता है। 12 12 12 12 जिनका 12 फाइल हमेशा साथ होता है। ठीक है ना? 12 12 सीगे होते हैं, साथ ही लगा होता है। फिर आपको अंदर बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो साथ ही लगा होता है बाहर ही। जैसे वाव लगी होती है, अलिफ लगा होता है, तुमा लगा होता है, तू लगा होता है। तू के बारे में खास तौर पे अनाना बोला करे। सही है। अच्छा, जब भी जी फेल आए सबसे जी। पहले ढूंढे उसका फाइल 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 फाइल। वो सीखे जिनका फाइल छुपा नजर नहीं आता। वो पहला और चौथा। हाँ, जिनका फाइल छुपा नजर नहीं आता, छुपा हुआ होता है, वो है ये। इसको ब्रैकेट वाले को छोड़ दें। वो सीखे जिनका फाइल छुपा हुआ होता है, वो है पहले और चौथे, लेकिन बाहर भी आ सकता है। अच्छा, दिए गए अल्फाज से फिल्म माजी की गर्दान कीजिए। वजदा कौन बनाएगा? अभी आप सुनाए मुझे, फौजिया। मैं सुनाऊं? मैं हाँ, फौजिया आप सुनाए जरा। वजदा वजदा हाँ बोले। मैं सुनाऊं? चलिए शुरू कर दो। वजद वजदा वजदा वजदू वजदत वजदता वजदना वजदता वजदतुमा वजदतुम वजदती वजदतुम वजदती वजदतुमा वजदतुन्ना अजीतु नहीं अजीदु ना, नहीं नजिदु बचत ना वजदना नजदना वजद तू बचत वजद ना, ठीक है ना? पक्का करें। सही है। वजद वजदना सॉरी वजद हाँ, अभी वजदना। आप गौर से सुने, कोई और पढ़े जिसको सही अच्छी गर्दान मैं आती। पढ़ूं जिनने मैम पहले पढ़ी है वो नहीं पढ़ेंगे। سمع سمع हाँ, سمع سمع سمعوا سمعت سمعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمع سمعت سمعتما سمعتن سمعت سمعنا वेरी गुड, माशाल्लाह। तो इसको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, वहां लिखने आएगी, बोलने नहीं आएगी। करूमा से करेगा कौन? बाप मैं करूमा करूँ से। मैम जी कह रहे फौजिया। करूँ माँ करूँ माँ करूँ मु हम्म, करूँ मत करूँ मता हम्म, करूँ ना हम्म, करूँ ता करूँ तुमा हम्म, करूँ तुम हम्म, करूँ ती करूँ तुमा हम्म। करूँ तुन्ना करूँ तू करूँ ना। जिसने ये गर्दान कर ली उसको सब आ जाएगी। ये मुश्किल है ना, थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम जी होती है। और इसका बोलने में मफूल प्रॉब्लम। नहीं होता है, इस वाले बाब में मफूल नहीं आता, लाजिम फेल है। चले, अब ये तो अलग बात है, समझ आई है या नहीं। अच्छा, नंबर 30 लेक्चर पे आते हैं। फाइल का इस्तेमाल। जुमला फेलिया में फाइल का इस्तेमाल कैसे होता है? माजी में कैसे होता है, मुजारे में कहता है। अब देखें, दिए गए जुमला फेलिया में फेल और फाइल पहचानिए। फाइल क्या है? फाइल बता दें। तू फलक तू में फलक का फेल फलक है और तू फाइल है। तू फाइल है। खलक नाम है, ना 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 फाइल है। ता फाइल है। शरीबा फेल है, ठीक है। शरीबा बाप जी समिया से है। शरीबा जी फेल है, और ता जो है वो उसका ना फाइल फाइल है। और फाइल है जलमना में जलमा फेल है, और फेल है फाइल है और ना डबल ना फाइल है। है। अच्छा, नसर तुन्ना में तो तुन्ना ना फाइल है। नसर फेल है। आपको फेल भी लिखना है, फाइल भी लिखना है, दोनों चीजें लिखनी है। तो नसर फेल है, और बाप तो ना पहचान फाइल करूबा। ألف
अलिफ फेल है अलिफ अलिफ और फेल है, करूबा अलिफ फाइल फेल है। फाइल अलिफ करूबा फाइल है, करूबा फाइल सॉरी फेल है, फाइल फेल फेल है। और करूबता में अलिफ 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 करूबा अलिफ फेल है और ता फाइल है। ता फाइल है। अलिफ फाइल अलिफ अलिफ जो है वो फाइल हाँ, है, ता मुअन्नस की अलामत अलिफ है, और फेल हाँ करूबा अलिफ है। फाइल। करूबत भी कर सकते हैं, अगर आपको लिखना आता है तो करूबत भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। करूबत लिखे में चौथा सीगा लिखना है ना, करूबा लिखेंगे तो पहला सीगा बन जाएगा। तो करूबत भी हो सकता है, और इसमें थोड़ा सा ना मार्जिन रखा करें, जरा सा 1%, कि स्टूडेंट का अगर जवाब मिलता जुलता है तो उसको मार्क्स दे दिया करें। बस हम किसी ने करूबा लिख दिया फेल है और अलिफ फाइल है तो भी सही माने, और करूबत लिख दिया तो भी वेल एंड गुड है ना। सजदू में क्या है, सजदा फेल है और फाइल क्या है, फेल वाव 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 फाइल आपने ये नहीं लिखना सजदू फेल है, ये नहीं लिखना, सजदू फेल नहीं लिखना, सजदा फेल है और वो फाइल है। अच्छा जी, उसके बाद गलत और सही जुमलों का तयन करना है। पहला और चौथे सीरे में वो जुमले हैं जिनका फाइल उनके साथ मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सही सही है। हिया को ता सुकून से पहचाना जाता है। सही ये जमीर नहीं होती, जमीर हिया होती है, मुस्ततिर होती है, ये अलामत होती है, मुअन्नस की अलामत है, ये फाइल नहीं है, ये मुअन्नस की अलामत है। फाइल हमेशा मंसूब होता है। गलत गलत फाइल अगर जमीर है तो उसे गर्दान में तलाश करना होगा। जी दुरुस्त सही हाँ, अगर जमीर है तो उसे फाइल उसे तो उसे गर्दान में तलाश करना होगा, बिल्कुल। फाइल अगर जमीर की सूरत में आ रही है तो चाहे माजी की या मुजारे की गर्दान में ही आएगी, और अगर इसम जाहिर है तो जाहिर है जमीर की सूरत में नहीं आएगी ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, नसर जैनबू, इसमें क्या करना है, ये गलत सही है या गलत? गलत। जैनब नसरत जैनब अच्छा नसरत हाँ जैनबू होना चाहिए। फेल जो होता है वो फाइल के मुताबिक आता है, जब इसम जाहिर फेल आता है, जब इसम जाहिर फाइल आता है तो वो फेल के मुताबिक होता है। फेल का मुताबिक का मतलब ये है कि मुजक्कर और मुअन्नस में, बस जी बाकी तो आपको पता है ना कि फेल जब शुरू में आता है तो वाहिद ही आता है ना। अब जी देखिए यहाँ जी दो फाइल आ रहे हैं लेकिन फेल तो वाहिद ही आ रहा है, तो क्या सही बात जी साबित है हुई कि नसरा फाइल खातून में फाइल जब इसम सही जाहिर होता है तो फेल हमेशा वाहिद आता है। ये फाइल जब इसम खड़ा जाहिर होता है तो फेल हमेशा वाहिद आता है और उसके मुताबिक आता है। यहाँ नसरा क्यों आया, क्योंकि ये मुजक्कर। अच्छा, नसरा यहाँ पे क्यों आया बताएं, यहाँ तो एक मुअन्नस एक मुजक्कर। हामिदन ये मुकद्दम है ना ये हामिदन की वजह से हाँ, मुजफ्फर कवाम होते हैं ना मर्द। जी वाहिद दोनों ही है हाँ, अब और ये यहाँ पे मुजक्कर है मुअन्नस भी, नस्ल जब आपके मिक्स आ जाते हैं मुजक्कर मुअन्नस तो फिर हमेशा क्या होता है, वो आपका मुजक्कर का इस्तेमाल हाँ मुजक्कर फेल आता है, मुजक्कर के हिसाब से सीखा आता है मुजक्कर के साथ हाँ से आता है। तो आपने ये नसरत नहीं लिखना या नसरा नहीं लिखना। नसरा क्यों नहीं लिखना, जो दो आ रहे हैं ना, तो नसरा क्यों नहीं लिखना, अलिफ क्यों नहीं लिखना? क्योंकि एक मुजफ्फर की अच्छा एक मुअन्नस है एक मुजफ्फर मुजक्कर है ये ना नसरा को ही नहीं एक नहीं जब मुजफ्फर जाहिर होगा है तो क्योंकि दो नहीं ये है लिखना नहीं नहीं जब जाहिर है तो हाँ क्योंकि वाहिद लिखेंगे ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि जो आपने नसरा नहीं लिखना, क्योंकि फेल जब शुरू में आता है तो हमेशा वाहिद आता है, आगे कुछ भी आता रहे। अगर ये जी तीन भी होते तो नसरा ही आना था। फेल जब शुरू में आता जी है ना, जब इसम जाहिर फाइल आता है, जब इसम जाहिर फाइल आता है तो फेल हमेशा वाहिद आता है और इसके मुताबिक होता है। तो अब मुताबिक दो लोग हैं तो वो एक तो हमने इसको मुजक्कर ही रखना है। किसको ये बात समझ में नहीं आई बताएं? साजा आ गई थोड़ी मुश्किल है आ गई लेकिन आप गौर करेंगे तो आ जाएगी। वाहिद आता है तो फेल जब शुरू में इसम ला जाहिर रहे हैं तो हमेशा वाहिद लाएं अच्छा और फाइल के मुताबिक लाएं। फाइल मुजक्कर है तो फेल को भी मुजक्कर नसरा लाएंगे, अगर फाइल मुअन्नस है तो मुअन्नस आएगा, नसरत आएगा। लेकिन अगर मिक्स है तो फिर नसर आएगा। कव्वाम, मर्द कव्वाम होते हैं। या युल्लज़ीना आता है कुरान में, मुअन्नस का सीगा नहीं आता, हालांकि औरतों से भी खिताब होता है। अच्छा, आगे क्या, फाइल अगर जाहिर और मुसन्ना हो तो पहला और चौथा सीगा इस्तेमाल नहीं होगा। दुरुस्त गलत दुरुस्त गलत है हाँ, फाइल अगर जाहिर हो ठीक है, इसम जाहिर फाइल आ रहा है
اور مصنع ہو، ٹھیک ہے، جی مصنع ہو یعنی تو پہلا اور چوتھا سیگا استعمال نہیں ہوگا. that's correct. ہاں صحیح ہے. ہوگا پہلا اور چوتھا ہی ہوگا Visit ہوگا نا. وہی ہوگا. ہوگا. جی فائل اگر اسم ظاہر ہے اور تو پہلا اور جی چوتھا سیگا استعمال نہیں ہوگا تو ہوگا نا. جب بھی فائل اسم ظاہر ہوگا پہلا اور چوتھا ہی سیگا آئے گا. غلط. جی جی لیکن مصنع بھی تو آ رہا ہے نا. کوئی بات مصنع. نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، مصنع ہو جمع ہو کچھ بھی ہو، اچھا فائل اگر تو اسم صحیح. ظاہر آ رہا ہے ضمیر نہیں آ رہی تو پھر پہلا اور چوتھا ہی سیگا آئے گا. مذکر کے ساتھ مذکر آئے گا، مؤنث کے ساتھ مؤنث آئے گا. دیکھیں یہاں فائل ظاہر ہے نا ٹھیک تو پہلا سیگا جی آیا ہے نا. اور یہاں پہ جی جو ہے آپ کا یہاں پہ ابھی یہ غلط ہے نا، تو اس کو ہونا چاہیے مسرت ہے نا. جی تو فائل اسم ظاہر تھا تو چوتھا سیگا آیا. یہاں پہ یہ دو تھے جی تو جی پہلا سیگا آیا. تو اس کا مطلب یہ یہ ٹھیک ہے کہ فائل جب بھی اسم ظاہر ہوگا، چاہے آگے واحد آ رہا ہو، مصنع آ رہا ہو، جمع آ رہا ہو، آپ کا پہلا اور چوتھا سیگا ہی استعمال ہوگا. تو پھر چوتھا غلط. کیوں ہوگا؟ کیوں ہوگا کہ مؤنث ہے تو چوتھا ہوگا. اگر پہلا ہے تو جی یہ رانگ ہے، یہ اسٹیٹمنٹ اس کو لکھ لیں، رانگ ہے. اچھا بہرحال اتنے کمپلیکیٹڈ سوال آپ کو شاید میں بھی نہ دیا جائے، لیکن پھر بھی پتہ تو ہونا چاہیے نا کیا کہا جا رہا ہے. آپ بات کو جی یہیں پہ سمجھ لیں. سوال نمبر 3، فائل کن دو طرح کا ہو سکتا ہے؟ دو طرح کا ہو سکتا ظاہر ہے. نائم اور فائل ضمیر. اور ضمیر. ہاں جی، فائل جو ضمیر ہوتا ہے اور وہ اسم ضمیر. ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ضمیر بھی ہو مستتر بھی. سکتا ہے. چھپا ہاں ہوا. چھپا ہوا چلے مستتر. فائل اگر میرا ظاہر ہے یہ تو فائل کے لیے یہ کون سے پلیز دو اس کا سیغے جواب ذرا استعمال ہوں؟ دوبارہ دے دیں. جی یہ پہلا اور فائل چوتھے کا دو طرح کا ہو سکتا ہے. ہاں تو ظاہر اور ضمیر. ہاں فائل دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو ضمیر آتا ہے نا اور یا پھر اسم ظاہر آتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں تو جی اسم ظاہر فائل آیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی اسم ظاہر آیا ہے. اگر یہ دونوں ہٹا دیں تو ضمیر فائل بنے گی نا. جی تو ٹھیک ہے. اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے فائل آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے اور چوتھے سیگے میں کیا ہوتا ہے، وہ اسم ظاہر آ سکتا ہے، باقیوں میں نہیں آ سکتا. 12 میں نہیں آئے گا، 12 میں ساتھ ہی لگا ہوتا ہے فائل، ضمیر کی صورت میں لگا ہوتا ہے. اب یہ بیسک چیزیں نا، یہ آپ کو پکی کرنی چاہیے نا. تو سمجھ ہوئی بات، سمجھ میں آئی؟ جی جی آ جی گئی سر. آ گئی. دیکھیں ماضی کا سیگا ہو یا مضارع کا، دو طرح سے فائل آئے گا. ٹھیک ہے، فائل یا تو ضمیر بن کے آئے گا یا اسم ظاہر. اور اسم ظاہر جو ہوگا وہ کتنے سیگوں میں ہوگا؟ دو ہی سیگوں میں ہوگا. چاہے دو میں. ماضی ہو چاہے پہلا اور مضارع چوتھا. ہو، فائل پہلا میں اور ہوگا چوتھا. صرف دو صورت میں ہو، یا اسم ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا. فائل اگر ظاہر ہے تو فائل کے لیے کون سے دو سیگے استعمال ہوں گے؟ یہ تو بہت ہی آسان سوال ہے. پہلا اور پہلا چوتھا. اور چوتھا. فائل اگر پہلا اور ظاہر ہو چوتھا. تو اس کی کون سی 3 نشانیاں ہوں گی؟ ظاہر. اسم اگر ہوگا، فیل کے ہاں بعد ہوگا. کون سی مرفوع ہوگا. فعل کے مرفوع بعد آئے ہوگا، گا. مرفوع اسم ہوگا. ہوگا مرفوع اور ہوگا مطابق اور ہوگا، فعل فعل کے مبتدا مطابق ہوگا. ہوگا. مبتدا مرفوع مرفوع ہوگا اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے. ہاں، ایک پھر نمبر ایک ظاہر ہے. فائل اگر اسم ظاہر ہوگا تو اسم ہوگا. نمبر 2 کیا ہوگا؟ وہ مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے، مرفوع ہوگا. اور نمبر 3 کیا ہوگا؟ وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، مبتدا مصنع بھی ہو بعد سکتا آئے ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. اچھا. اچھا نہیں، ابھی چیزیں پکی ہونی چاہیے. تیسرا پوائنٹ کیا بتایا آپ نے؟ ایک سیکنڈ میں تھوڑی آواز کھول لوں. میم تیسرا پوائنٹ کیا بتایا آپ نے؟ تیسرا پوائنٹ یہ ہے، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر فائل اسم ظاہر ہوگا تو اسم ہوگا. ٹھیک ہے، ضمیر نہیں ہوگی، اسم ہوگا. اسم کا مطلب ہے جیسے آمنہ، زینب، یہ حامد ٹھیک ٹھیک. وغیرہ. دوسرا یہ کہ وہ مرفوع ہوگا کیونکہ وہ فائل ہے. ٹھیک ہے، اور تیسرا کیا ہے کہ وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، مصنع بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. حالت رفع میں ہوگا، مرفوع ہوگا یا پھر. اچھا، اس میں آپ دیکھیں مبتدا نشانیاں بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہاں یہ ایک مبتدا نشانی میں بھی ہو سکتا ہے فاعل. ایک تو وہ مرفوع ہوگا اس لازم. فاعل مبتدا بھی. مرفوع ہوگا، جب فعل کے سٹارٹ بعد کریں گے ہوگا. پھر الحمدللہ. یہ بھی ہے. اس میں آپ نے 3 نشانیاں لکھنی ہے، کوئی بھی لکھ لیں. جو میں نے پہلے بتائی ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں، جو میں ابھی بتا رہی ہوں وہ بھی لکھ سکتے ہیں.
मरफू होगा ठीक नंबर 1, फाइल है तो मरफू होगा, फेल के बाद आएगा। फाइल फेल कब के आता बाद है? हमेशा फेल के बाद फेल के आता है, बाद है। आफ्टर आता है, पहले नहीं आता। हम्म, फेल से पहले कभी फाइल जी नहीं आता, फेल के बाद आएगा, और जी फेल का पहला या चौथा सीगा इस्तेमाल होगा। ये 3 पॉइंट लिखे अपने पास। मरफू होगा नंबर 1, जी फेल के बाद आएगा, नंबर 3 फेल का पहला और या चौथा सीगा होगा। उसके अलावा तो इसमें जाहिर फाइल आ ही नहीं सकता ना, पहले और चौथे सीगे के बगैर। तो ये अलामत भी जरूरी है लिखनी। फिर ये है कि वो फेल के बाद आएगा, ये भी जरूरी है, फेल से पहले फाइल नहीं आता। और फिर वो लाजम मरफू होगा। अब इन 6 निशानियों में से अगर आपने कोई भी 3 लिख दिए तो वो मान ली जाएंगी, अनलेस के वो गलत लिखी हो आपने। अच्छा जनाब, उसके बाद दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। जाल तो उस्ताद लास्ट वाला रह गया, हाँ, जाल तो लफ्ज जालतू को लफ्ज को पढ़कर। पढ़कर 2 बातों का इल्म होता है। किस चीज का? इसमें फेल तो और जो है वो फाइल है, फेल और फाइल का हम्म, जो उसको इसमें मैंने बनाया। करने वाला फेल और हाँ, फाइल एक का तो ये काम तो ये करने, एक काम तो हुआ काम, है और मिजाजी हो काम गई किसने। मिजाजी। माजी का हाँ, सीधा है, का, तो हाँ माजी का सीधा है, ये पता लगता है। हाँ बिल्कुल। दूसरा क्या है? और दूसरा ये काम कि हुआ है, ये काम करने वाले का पता मुतकल्लिम हम्म, मुतकल्लिम का सीधा है, बिल्कुल ठीक है। मुतकल्लिम का सीधा। ये पता चल रहा है कि काम किसने किया है, और काम का पता चल रहा है, 2 चीजों का पता चल रहा है। काम का पता चल रहा है कि कोई काम हुआ है, और दूसरा ये पता चल रहा है कि किसने किया है। तो किसने किया है वो हम तू है, और फेल क्या है? काम है। सही है, काम हमसे फेल। फेल और फाइल का पता चल रहा है। हाँ, ये भी लिख सकती हैं, बस जवाब आपका ना गलत नहीं होना चाहिए, चाहे अल्फाज कुछ भी हो जाएं। ऐसे सवालों में अल्फाज कुछ भी हो जाएं, जवाब जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, सही माना जाएगा। अच्छा, लिखना है ना मैम, फेल और फाइल है। हाँ, फेल का पता चल रहा है, काम का पता चल रहा है, और काम करने वाले का पता चल रहा है। जी जी अच्छा, दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। गर्दान के वो सीखे जिनका फाइल ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, उनकी तादाद कितनी होती है? 12। 12 होती है। किस 12। में? माजी हाँ, और 12 होती है आपके माजी में। ठीक है, माजी में 12 होती है। जी और मुजारे में जिनका फाइल ढूंढने की जरूरत नहीं है, 3। तीन। नहीं, 9 होते हैं, ना मुजारे जी, जी जी क्योंकि उनका उल्टा बोल फाइल दिया। मुजारे में 9 का फाइल साथ ही लगा होता है, माजी में इसमें 12 दो का तीन फाइल नहीं साथ है। लगा होता है। जी, सही है। 3 का ठीक साथ लगा होता है मुजारे में। 3 के अंदर है। होता है मुदारिस। मुजारे में 9 9, के साथ लगा होता है, 9 के साथ लगा होता है, और 3 के अंदर होता है जी। 3 के जी अंदर जी नहीं जी होता, 3 के सिर्फ अंदर होता है, 2 का अंदर और बाहर होता है। जी जी 2 का अंदर बाहर, पहला और नहनु। चौथे का अंदर बाहर, और 3 का सिर्फ अंदर। जो अंता, अना और नाहनु होता है वो सिर्फ अंदर होता है, बाहर नहीं होता। उसके उसके जी उसमें जाहिर फाइल नहीं आ सकता। और बाकी 9 स्वीगज हैं, उनमें साथ ही लगा होता है। ठीक है। जी मुजारे की तकसीम 3 तरीके से होती है, माजी की तकसीम 2 तरीके से होती है। माजी की तकसीम जी 2 और 12 में होती है, और मुजारे की तकसीम 3 तरह से होती है। 2 में भी होती है, 3 में भी होती है, और 9 में भी होती है। 9 में भी होती है। 2 में अंदर बाहर, 3 में सिर्फ अंदर, और 9 में साथ ही। साथ लगा होता जरूरत नहीं है ढूंढने की। तो ये बातें लिखने से आती हैं, इधर से सुन के इधर से निकालने से नहीं आती। कभी दोबारा नजर पड़ती है, भूल जाता है मेरा बताया हुआ, तो आप देख सकते हैं। गर्दान के वो सीगे जिनका फाइल उनके अंदर मौजूद हो सकता है, उनकी तादाद है। 2 है, 12 है। 12। 12 12। 12 है। इसमें उनका भी फाइल, 7 होना चाहिए। 1 मिनट मैं दोबारा पढ़ती हूँ क्वेश्चन। ये इसमें थोड़ी मैं बताती हूँ। गर्दान के वो सीगे जिनका फाइल उनके अंदर मौजूद हो सकता है, उनकी तादाद 12 है। और यहाँ पर इस सवाल में भी गर्दान के वो जिनका फाइल ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो भी 12 है। सवाल डिफरेंट है ना। जी जी गर्दान के जिनका फाइल उनके अंदर मौजूद हो सकता है, उनकी तादाद, दो अंदर, अंदर की बात हो दो रही है। 2 है ये।
ये दो हैं, यहाँ गलती है दो सवाल में, इसको सही कर लें, करेक्शन कर लें इसको। यहाँ पे दो तो का फिर लफ्ज भी अंदर बाहर भी होगा। यहाँ 12 का नहीं आना चाहिए, 2 का आना चाहिए। 12 की बजाय 2 आना चाहिए यहाँ पे, जी। गलती से 12 नहीं लिखा गया। उसका इसमें अंदर दो बाहर हो सकता है ना। बाहर दोनों कॉन्सेप्ट दिए जाने चाहिए ना, अंदर और बाहर। जी ठीक है देखिए देखिए, माजी के बारे में बात हो रही है, नंबर 1। और माजी में जी तकसीम दो तरह से जी होती है, पहला और चौथा सीगा फाइल अंदर बाहर हो सकता है, ठीक है। जी और जी 12 में जो है जी फाइल ढूंढने की जरूरत नहीं है बाहर। तो वो तो ऊपर वाले सवाल का जवाब हो गया ना, कि 12 सीगों जी में फाइल ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहले और चौथे जी सीगे में फाइल बाहर भी ढूंढा जाता है। अब ये सवाल क्या है, गर्दान के वो सीगे जिनका फाइल उनके अंदर मौजूद हो सकता है, ये दो ही हैं, जी दो सीगे हैं ये। अंदर भी हाँ, अंदर भी मौजूद हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। बाकी तो कोई जवाब सही नहीं है ना, इनमें से कोई जवाब भी सही नहीं है। उस्ताजा, एक बात और पूछनी थी कि अगर हमें तो यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ ना, वो तो हमें पता है माजी का ही करें, तो माजी को अपने दिमाग में रखते हुए सॉल्व करें। और अब लिखा हुआ ही ना हो कि माजी का पूछा जा रहा है या मुजारे का, तो फिर आप अभी माजी पे ज्यादा आपका वो है ना, इतना ज्यादा जी मुजारे पे इतना नहीं पढ़ाया गया, तो माजी पे रखें कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये जी जाहिर है माजी के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ भी, और माजी के बारे में यहाँ, यहाँ 2 जवाब होगा, यहाँ 12 जवाब होगा। गर्दान के पहले और चौथे सीगे का फाइल, अब देखेंगे पहले और चौथे इसका फाइल क्या होता है। इसम जमीर की सूरत में जाहिर और होता है, जमीर इसम जाहिर की सूरत में होता है, इसम जाहिर या जमीर दोनों 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 की दोनों सूरत में आ सूरत सकता है। इसमें दोनों में जाहिर हो या सकता है। जमीर अच्छा, से एक फॉलो बात मैं और बता दूं कि बाद दफा आप लोग को जवाब आता होता है, लेकिन आप लोग जल्दी करते हैं, सवाल को गौर से नहीं पढ़ते। 3 दफा जब तक सवाल अच्छी तरह समझ में ना आ जाए ना, पढ़ते रहे सवाल को। जब जी कोई आपके पास टाइम लिमिट तो होती नहीं है, आपको 2 वीक्स दिए जाएंगे टेस्ट करने के लिए, तो आप थोड़ा थोड़ा अच्छा करके भी करेंगी, लेकिन सवाल को गौर से पढ़ें। जल्दी करेंगे तो आपको जवाब आता होगा तो आप गलत क्लिक कर देंगे, ठीक है। सही तो सही हाँ, फेल के बाद आने वाला इसमें उसका फाइल होगा, अगर वो किस हालत में होगा। हालत रफा में हो। मरफू हाँ, रफा में सीगों में फाइल का तायुन कीजिए। अब फाइल बताइए, यहाँ पे देखिए ज्यादातर माजी ही आ रहा है आपको। जी 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 हाँ। अंत में ता, अंता हम्म और अंत में तू, हम्म तू हुआ और जाला में हुआ, हुआ इसको खलक़ल्लाहु में वाव अल्लाह, अल्लाहु हम्म अल्लाहु और कफरू में वाव। वाव वाव वाओ, देखे ये 12वां सीगा है ना, इसलिए साथ ही लगा हुआ है। ये पहला जी सीगा है तो बाहर भी आ रहा है, अगर बाहर ना होता तो यहाँ बाहर नहीं आ रहा तो अंदर है, ठीक है। तो पहले और चौथे सीगे में अंदर बाहर हो सकता है, और बाकी जो है सबका साथ लगा हुआ है, ता तू वाओ, ये सब साथ लिखे हैं। जब भी आपने फाइल ढूंढना हो, ये देखेंगे पहला और चौथा सीगा या 12 में से है, माजी के लिए। अगर 12 में से वो आ रहा है आपका सीगा, तो फिर आपका फाइल साथ ही होगा, और पहला और चौथा है तो अंदर बाहर। यहाँ पे देखें, अभी लेक्चर नंबर 32 पे आ गए। अच्छा, अभी कोई पढ़ेगा यहाँ से? शाइन आप पढ़ेंगी? मैं जी जी ऐसे अफाल जिन्हें मफूल की जरूरत नहीं होती डैश अफाल कहलाते हैं। हम्म, लाजिम, तद्दी लाजिम लाजिम जी अच्छी वो तरह से। अफाल हम्म जी हाँ जिन्हें वो अफाल जिन्हें मफूल की जरूरत होती है हम्म डैश अफाल कहलाते हैं। मुतअद्दी तर्दी, हाँ मुतअद्दी हाँ। गोल हा पर डैश हरकत आएगी जब उससे पिछले हर्फ पर जबर या पेश होगा। उल्टी पेश उल्टी पेश, हम्म ठीक है, सही है। गोल हा मैम एक पर टेस्ट आप छोड़ गई हैं पीछे। पीछे हाँ, मुझे लग रहा है मैंने छोड़ दिया है। जी जाकिला, मैं वही देख रही थी क्या हुआ है ना। तो ये वाला ये ये अभी कर नहीं, लिया ये नहीं किया, 30 वाला लेक्चर 30 नहीं किया है। 31 करना है अच्छा, ये इससे वाला अगला वाला। ये भी कर लिया था जी थोड़ा ख्याल रखना फौजिया, ठीक है। एक तो रिकॉर्डिंग हो रही है, उसका ख्याल रखें। नहीं अच्छा, 31 इसमें है ही नहीं नहीं मेरे में ना, मिस हो गया। 31 नहीं मेरे पास है वैसे तो अच्छा, लेकिन तो हाँ, कौन करेगा उसको? लेकिन मैं स्क्रीन पे नहीं आ रहा ना, वैसे तो मैं कर लूँ। आप कर सकती हैं स्क्रीन शेयर। स्क्रीन नहीं शेयर कीजिए नहीं, प्लीज। एक सेकंड, मेरा गड़बड़ हो जाएगा, सब्र कर जाए थोड़ी देर।
मैं आपसे खुद सवाल कर लेती हूँ, 31 में निकालती हूँ, देखते हैं क्या है। 30 हमने कर लिया, नहीं किया ना? अच्छा, 30 कर दिया ना सजा मैम। 2 वाला कर लिया, ठीक है, सही है। जी 31 रहता है, अगर मेरे पास है तो देखते हैं। मैं भी आगे हो इसमें। हम्म, बाज दफा ना डिलीट हो जाते हैं, जी इंशाल्लाह, नहीं तो मैं बाद में करा लूँ। हाँ, 31 है। मैं सवाल करती हूँ आपसे, ठीक है? अच्छा, ये मुझे आप कंफर्म कीजिएगा, यही वाला टेस्ट है ना? जुमला फेलियर में मफूल का इस्तेमाल टॉपिक। नहीं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अरबी जबान का उर्दू तर्जुमा कीजिए। लेकिन टॉपिक के ऊपर जुमला फेलियर में मफूल का इस्तेमाल ही लिखा हुआ है ना? अच्छा, जी तो आपने क्या करना है, अरबी जबान का तर्जुमा उर्दू में कीजिए। तो मैं जी अब ये जुमले जो है मुझे लिखने पड़ेंगे, आप लोग कैसे करेंगे? रकीबत आयशा तू फिस सैयारती, यही है ना जुमला? जी 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 मैम, आयशा रकीबत, गाड़ी में हाँ आयशा गाड़ी में उसके बाद सवार हुई। सवार हुई हाँ आयशा। यहाँ स्क्रीन पे हाँ नहीं आ रहा, आयशा गाड़ी में सवार हुई। हाँ, स्क्रीन पे इसमें नहीं आ नहीं है रहा। मेरे पास 31 टेस्ट, इसलिए मैं खुद बोल के बता रही हूँ। रकीबत आयशतु फिस सैयारती, इसमें फेल क्या है, फाइल क्या है, और आगे फिस रकीबा सैयारती क्या? रकीबा फेल है, फाइल इट्स जैनब, आयशा टू, हिया फाइल है। नहीं नहीं, आयशा तो फाइल है। इट्स फाइल, हाँ। हाँ, हाँ करने में आयशा सैयारा रकीबत इज इसके मफूल बाद फेल, फेल है। हिया फेल है, एंड मफूल इज तैयार है। फी हर्फ के जर, फिस सैयारती क्या है? फिस सैयारती जार मजरूर है मुतल्लिक ना? से मरकब मफूल, जारी। सैयारा मरकब जारी, मफूल है। हाँ, ठीक है। मफूल नहीं बनता, मुरकब जारी कभी मफूल नहीं बनता, मफूल हमेशा मंसूब होता मुतालिक। है। मुतालिक बोलेंगे, फेल फेल का मुतालिक है। लेकिन ये मुतालिक नहीं फेल, पूछा जाएगा आपसे, आपसे सिर्फ कहा जा रहा है तर्जुमा करें तो उसी तक रहे। मैं थोड़ी सी आपकी इजाफी उसकी चाह रही थी, बस तर्जुमा आपको। नसरल वलदैनी, नसरा अल वलदैनी, नसरा उन दो लड़कों मन लड़कों दो ने लड़कों मंसूब ने दो अलवरदैन लड़कों ने मंसूब दो है लड़कों की मफूल। मदद मदद की, की। मदद, नसरा ने दो लड़कों की मदद दो की। लड़कों दो हाँ। लड़कों ने उसकी मदद करी। हम्म, दो लड़कों ने दो लड़कों की मदद की। हाँ, ये सही तर्जुमा है, दो लड़कों ने नस, नसरा, नसरल नस, वलदैनी। और नस, इस तरह से नसरा भी हो सकता है ना सादा उस्ताद साहब, अलिफ भी दो है मुज़क्कर ने दो आखिर में लड़कों की नसरा पे। मदद की। उन दो उन लड़कों दो ने दो लड़कों ने लड़कों की उन मदद दो की। लड़कों की मदद की। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि नसरा में फाइल क्या है? नसरा की बात हो रही है, आगे अलिफ भी आ रहा है, तो फाइल क्या है नसरा में? लिख क्या है? अच्छा अच्छा, अलिफ अलिफ अलिफ, हाँ अलिफ। हाँ, अलिफ है। उन दो अलिफ लड़कों है। ने, उन दो लड़कों ने दो लड़कों की, वलदैनी क्या है, मंसूब है, वो मफूल बन रहा है, ठीक है? जी हाँ, उन दो लड़कों ने, ये भी लिखना है, उन भी लिखना है, गायब का सीगा है ना। उन दो लड़कों ने, या दो लड़कों ने दो लड़कों की मदद की। दो लड़कों की कतलुल मदद। काफिरीना, कतलू है और फिर अल काफिरूना है। काफिरों ने कत्ल किया। उन्होंने काफिरों को कत्ल किया। उन्होंने, हाँ की। उन्होंने उन्होंने कत्ल किया जमा। काफिरों को। काफिरीना फाइल नहीं कतलू बन में वाव सकता। फाइल है। हम्म कतलू में वाव फाइल है और काफिरीना मंसूब मफूल बन रहे हैं। काफिरीना मंसूब है, मफूल है, कतलू मफिल। काफिरीना कैसे फाइल हो सकता है फौजिया? मंसूब है वो। नहीं नहीं, मैंने फाइल तो नहीं कहा उसको, नहीं, मैंने आपकी मैंने बात नहीं वैसे कर रही, आप गलती नहीं कर सकती हैं, वो दूसरी फाइल फौजिया से बात कर। वो जल्दी मैंने नहीं करती हैं, कहा। वो गलत जवाब देती हैं, सोचती नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, मुझे बताएं कि दहक ना, दहक ना में हम सब हंसे। हम हम हंसे। हंसे ना। अच्छा, ना फरिह, पाए। नाम फर, फाइल। फरेहती क्या है? तू वेरी खुश आप हुई। खुश हाँ हुई, तुम मोनस खुश हुई। ती जो है इसमें तुम खुश फाइल हुई, है। फाइल है, तुम तू खुश हुई। खुश हुई, तू तुम खुश खुश हुई। हुई जी। अक, अंती। अकल तुम, तुमने तुम कल सबने तुम खाया। तुम सबने खाया तुम जी। सब ने गुड। खाया। कतब तुर तुम रिसालता, फाइल है। कतब तुर मैंने रिसालता। मैंने खत लिखा, मैंने खत मैंने खत लिखा। लिखा। हाँ, रिसालता जबर आ रही तो मफूल बनेगा, मफूल। फाइल नहीं बनेगा। मफूल। अच्छा, नजाना, नजाना फिल इम्तिहानी बफरेना। हम कामयाब हुए। हम कामयाब हुए इम्तिहान में और हुई, खुश हुए। हुई। हम नहीं आएगा। हाँ, फरेना, नून पे जबर आ रही है ना, मोनस का जी, सीगा है, वो तो ख्याल रखना है, ठीक कामयाब है ना? अच्छा अच्छा उस्ताद मैं समझी कि वो इम्तिहान में। हम वाला है।
हाँ देखिए, मैंने ना नहीं बोला, ना बोला है ना, नजे न फिल इम्तिहानी व फरिह ना, ठीक है, हम ना नहीं बोला था जी। मैंने। अच्छा, खलक नल अर्दा बस समावाती, हमने आसमान आसमान और जमीन बनाए। पैदा किया ये जमीन जमीन और और आसमान को। खलक ना में ना जमीर फाइल है, हमने पैदा किया किसको, अल अर्दा व आसमान। समावाती, आसमान। दोनों को। अच्छा, शरीब तुल का वता, मैंने मैंने कहवा पिया। मैंने मैंने कहवा क्या पिया। किया? मैंने कहवा पिया। अच्छा जी, गलत जुमले और दुष्ट जुमलों का फैसला करना है। जिस पर फेल वाक़या हो वो मफूल कहलाता है। सही। हम्म, अरबी जबान में जिस पर फेल वाक़या हो, यानी ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो मफूल होता है। फेल फेल करने वाला क्या होता है, फाइल। फाइल होता है। फाइल मरफू होता है, और मफूल क्या होता है, मंसूब। मंसूब। मंसूब होता है। चाहे वो इसम जाहिर हो, चाहे वो जमीर हो, मंसूब ही होगा वो, ठीक है, जमीर होगी तो भी मंसूब। और अगर फाइल इसम जाहिर है तो वो भी मरफू होगा, और फाइल जमीर है तो वो भी मरफू जमीर होगी। दो तरह की जमीरें होती है ना, हुआ हुमा हुम, ये रफई मरफू जमीरें हैं। और दूसरी जाहिर साइड है। पे हु हाज हुमा, छोटी जमीरें जो है, का कुमा कुम की कुमा हाँ, कुन्ना। वो वो मंसूब जमायर मफूल है। बनती हैं। वो दो तरह से इस्तेमाल होती हैं, वो मफूल के तौर पे भी आती हैं, और वो मजरूर के तौर पे भी आती हैं। जी जी मजरूर कब जी। आती हैं वो, जो छोटी जमीरें होती हैं, जब हर इसम के फिर के बाद और बाद मुदाफ या इलैहि जब फिर बन रही होती है मुजाफ तब। मुजाफिर लेके। सोच के बोले, पीछे हरफ जर हो, उनसे पहले हरफ जर हो तो वो मजरूर होती हैं, मंसूब और जमीरें मुजाफ मजरूर। और अगर मुजाफ इलैह की मुदाफ जगह इलैह। पे आ रही हैं तो भी मजरूर होंगी। जी। मुजाफ की जगह पे कभी जमीर नहीं आती, हमेशा मुजाफ इलैह की जगह मुजाफ पे जमीर मुजाफिर आती है। जी। अच्छा जनाब, अरबी जबान में तरतीब के लिहाज से पहले फेल, फिर फाइल और फिर मफूल लाया जाता है। ठीक है। सही है। अ, पहले फेल, फिर फाइल और फिर मफूल, ठीक है ना। जी। अरबी जबान में गैर अरबी नाम मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं। गैर अरबी नाम गलत। गलत है। कैसे इस्तेमाल होते हैं, गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ, मुनसरिफ, ठीक है, इन जी। सरफा यनसरिफु, मुनसरिफ। अच्छा, मुनसरिफ। अरब इस्म को नकरा लाता है उसे खास मफहूम देने के लिए, सही है। ये सही है, जी ठीक है ना। अच्छा, जी उसके जी। बाद दाऊदू एक मुनसरिफ इस्म है। आज तक क्या। दाऊद नहीं दाऊद, नहीं। दाऊद, दाऊदू, दाऊद नहीं उस्ताद। नहीं, गलत। गैर हाँ। मुनसरिफ है। मुनसरिफ। मुनसरिफ। मुनसरिफ कौन सा होता है, जिसपे तनवीन आती है जी। जी जी और जिसपे जेर आती है, वो मुनसरिफ होता है ऑलवेज। गैर जी। मुनसरिफ पे जेर कभी नहीं आएगी, तनवीन कबूल नहीं करते तनवीन भी और कबूल नहीं ना कर। जेर। अच्छा, अच्छा, अरबी जबान में फाइल और मफूल को पहचाना जाएगा, आराब से। एराब से। एराब से पहचाना जाएगा, ठीक है ना। जी। हरकत से नहीं पहचाना जाएगा, सीगों से नहीं एराब पहचाना से। जाएगा, फाइल और मफूल को पहचाना जाएगा एराब से। आराब। फाइल जो होगा मरफू होगा, और मफूल जो होगा वो मंसूब होगा। एराब होता है लास्ट लेटर की हरकत, जी सही है। या जी उस्ताद। पहचान आपको होनी चाहिए, रफा नस्ब कैसे होता है। मुस्लिमूना मरफू है तो वो फाइल होगा ना, मुस्लिमीना जी। मंसूब है तो वो मफूल होगा। मफूल। जो इसम जुमला फेलिया में मफूल बनकर आ रहा हो वो क्या होता है, जो इसम मंसूब। जुमला फेलिया में मफूल बनकर आ रहा हो वो मरफू होगा, मंसूब होगा, फेलिया। मजरूर। मंसूब। मंसूब। अच्छा, उर्दू जबान में फाइल के साथ हमेशा डैश लगाया जाता है। ने। ऑयल के उर्दू जबान में साथ। जब तर्जुमा जी। कराते हैं तो ने। फाइल के लिए क्या लगाते हैं, ने। ने हमने। लगा, ने। ने लगाते हैं। और मफूल के लिए क्या लगाते हैं, को। को। वो। अच्छा ठीक है, जालूता जो है मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है, कभी मुनसरिफ और कभी गैर मुनसरिफ है, क्या होगा जवाब। गैर। गैर गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ। अच्छा, इसकी वजह भी बता दे, गैर मुनसरिफ होने की वजह भी बता दे। ये अल्लाह नॉन अरेबिक नेम है इसका गैर ना। अरबी नाम है। एक तो तनवीन नहीं अलम, लगी। एक तो अलम है, अलम नाम है, और दूसरा क्या है, नॉन अरबिक नेम है। दो वजह चाहिए होती है गैर मुनसरिफ को साबित करने के लिए। अच्छा, सवालात के भी मुख्तसर जवाब देने हैं, टू द पॉइंट,
ठीक है, लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने ताकि पढ़ने वाले को टाइम लगे। गैर मुनसरिफ अस्मा की दो पहचान बताएं। तनवीन कबूल नहीं करते और भी जेर कबूल कबूल नहीं नहीं करते। करते, और मंसूब और मजरूर एक ही होते हैं। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, जेर कबूल नहीं करते। ये भी लिख सकते हैं, नस्बी जरी हालत में एक ही होती है, ठीक है एक ना, ही होते हैं। जबर के जी साथ होती है ये भी। बस जवाब सही होना चाहिए आपका, गलत नहीं होना चाहिए। किसी इस्म के जी मजरूर होने की दो वजूहात क्या होती हैं? इस्म के मजरूर अभी मैंने बताई हैं। जी जी, जी। मुदाखले पे इससे हाँ, पहले जरह मुदाखले के या बाद हरफ फिर आएगा, जर हरफ ये जर के हरफ बाद जर याद आएगा। लगाते हैं। वो ही है जो जमीर के मजरूर होने की होती है ना, जी। वही है। अरबी में जी। मफूल की दो पहचान बताइए, मफूल की दो पहचान। मंसूब होगा मफूल मंसूब और होता है। फिर और फेल वाक़या होता और फाइल के निकरा बाद आ होता रहा है, होगा। नकरा हाँ, होता है। फाइल के बाद भी आ सकता है, फाइल से पहले भी आ सकता है। फाइल से पहले लेकिन भी आ सकता नंबर एक वो क्या है, होगा, फिर मफूल फेल की दो वाक़या होता है। पहचान मंसूब होगा, है। और तर्जमा, तर्जमा उर्दू में तर्जमा जो होगा को होगा, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई और समझना है तो को तर्जमा किया जाता है, ठीक है। और मखलूक होता है ना मैम। ये भी लिख सकती हैं कि फेल और फाइल के बाद आता है, ये भी लिख सकती हैं। सही, जो भी फिर लिखेंगे से एक्सेप्ट। कीजिए फौजिया मैम, क्या ये फिर से। उस्ताद अमूमन लगाएंगे ना साथ में, अरबी में फेल और फाइल। मफूल की दो पहचान बताइए। एक क्या होती है, वो मंसूब होगा, मफूल जी। हमेशा क्या होगा, मंसूब होगा। दूसरी पहचान और क्या फॉल है? के बाद, और फॉल के बाद आएगा। अमूमन, जी, अमूमन फाइल के बाद आता है, हाँ बस फेल और ठीक है, फाइल के बाद। फेल और फाइल के बाद आता है। अच्छा, आम जो नॉर्मल कायदा है ना उसमें से अच्छा, अब मुझे जी बताएं फेल फाइल और मफूल पहचानिए, ठीक है। हम्म, नसरा क्या है, फेल है। फेल, जैदुन क्या है, फाइल, फाइल, हामिदन क्या है। मफूल। मफूल, हाँ, कैसे पहचान रहे हैं, एराब से पहचान रहे हैं। आखिर में एराब। पेश आ रही है, जी एक पेश या दो पेश, तो फाइल होगा। फेल के जी बाद आ रहा है, फेल से पहले फाइल कभी नहीं आ सकता, फेल के बाद हमेशा फाइल आता है। और फिर आगे जैदन कैसे पहचान रहे हैं, दो जबर आ रही हैं उसके ऊपर, एक जबर भी आ मंसूब। सकती है, मंसूब होगा, और फेल और फाइल के बाद आ रहा है। अच्छा, नसरा हामिदन, इसमें फेल क्या है, हुआ, हुआ फाइल है, नसरा फेल है, हामिदन मंसूब है, मफूल बन रहा है, मफूल मफूल। है। अच्छा, क़रा अल मुस्लिमू अल कुराना, करा फेल है, अल मुस्लिम फाइल है, अल कुराना मफूल है। हाँ, एराब से पहचान रहे हैं ना। एक जी जबर हो जी या एक पेश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो पेश हो तब भी वो फाइल ही है, और दो जबर हो तभी। दो जबर के बाद एक अलिफ का लाना जरूरी होता है। ये प्लीज कतबत स्क्रीन आ जैनब, सकती है सामने। हाँ बस थोड़ा सा रह गया, सबर कर लीजिए, अभी स्क्रीन आने वाली है, ठीक है। ये टेस्ट जी सिर्फ जी। मिसिंग था, मुझे पता नहीं लगा। कतबत जैनबू, जैनबुन कभी नहीं होता, कतबत जैनबू अल किताबा। आप ही बताइए, जो भी सिस्टर बोल रही थी, कतबत क्या है, कतबत कतबत के में अ, क्या लग रहा है, मुन्नस फेल है, गायब इस समय हरफ है, फेल, कतबत फेल, फेल है। फेल जी, है। फेल है और मुन्नस गायब का सीगा है। हाँ, तो जैनबू क्या होगा, वाहिद मुअन्नस गायब। जी जैनबू क्या होगा, फाइल, जी, फाइल। ज़ैनब और फाइल। अल किताबा, अल किताबा मफूल, मफूल। हाँ। तो मफूल। कताबात के अंदर वाले, अंदर नहीं अभी बनाना, जब इसम जाहिर आता है, फाइल बाहर आ रहा है, मरफू इसम, तो फिर अंदर वाली जमीर को फाइल नहीं बनाना। ये नहीं जी, कहना कताबत फेल है, उसके अंदर ही या जमीर फाइल है, ये नहीं कहना। यहाँ पे अच्छा जी। जैनबू आ रहा है, तो जैनबू जो है वो फाइल है, उसके ऊपर दम्मा आ रहा है। अगर जैनबू ना होता तो फिर हम कताबत की जमीर को फाइल बनाते, ऐसा ही है ना। जी 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 जी। हम्म। कतलन मुस्लिमून नल काफिरीना, कतला क्या है, कतला फेल, फेल फेल, है, मुस्लिमोना मुस्लिमून as फाइल, 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 अल काफिर, काफिरीना मंसूब मफूल। हाँ, तो अल मफूल। मुस्लिमूना रफई हालत में है। तो रफई हालत जो हम्म, होती है वो वॉ नून से भी आती है ना, जी, अलिफ नून से भी आती है, वॉ नून से भी आती है, दमे से भी आती है। और इसी तरह हम्म। नस्बी हालत जबर से भी आती है, और या से भी या से आती भी है। आती। तो पहचान, अच्छा, नसर तिल, अच्छा यहाँ पर आप देखिएगा, ये है नसरत, मैं बोल रही हूँ नसरत अल मुस्लिमतुल मुस्लिमता,
नसरत, अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमता। मुअन्नस गायब का सीगा है, ता साकिन इसमें फाइल। नो, दोबारा नहीं, नसरत, अल अलमुस्लिमतु फाइल है, मुस्लिमतु, फाइल है, अल मुस्लिमत मुस्लिमतु फाइल है, अल मुस्लिमता मफूल। मफूल है। मफूल, और ता के नीचे जेर क्यों आ रही है फौजिया? मिलाने के लिए। मिलाने के बताए लिए। साकनैन की वजह से, हाँ मिलाने के देखें, लिए। ये अपना आपने यही नहीं कहना इसमें अंती फाइल है, जी क्योंकि फाइल तो आगे आ रहा है ना, अल मुस्लिमतु फाइल आ रहा है ना। जी जी तो दो दो फाइल नहीं हो सकते कि आप ती को भी फाइल बना दें और अल मुस्लिमतु को भी फाइल बना दें। ये ता के नीचे जेर लगी हुई है, ये असल में नसरत है, चौथा सीगा है ये। जी तो जब हम जी मिलाते हैं, दो साकिन आते हैं, तो फिर हम जेर लगाते हैं। तो ये जेन में रखना है, सोच के करना है, वरना नंबर कटेंगे आपके। और अगर हो सके तो उसको दोबारा सुन लेना। दरबल मुस्लिमून ज़ालिमीना। दरबा दरबा फेल फेल है, अल अल मुस्लिमूना मुस्लिमा फाइल फाइल है, है, अल ज़ालिमीना जालिमीना मफूल है। मंसूब मफूल। मफूल है। अच्छा, मफूल आगे दरबतिल मुस्लिमातु अल मुस्लिमाती। ये जमा किसी गए, अल मुस्लिमातु अल जी। मुस्लिमाती। अल मुस्लिमातु फाइल दरबत है, अल मुस्लिमाती अलमुस्लिमतु मंसूब फाइल है, मफूल। अलमुस्लिमाती मफूल है। मफूल है। जमा मुअन्नस सालिम में नस्बी हालत जेर के साथ आती है। जी। जी ठीक है, ये याद रखना है। तो ये अल जी मुस्लिमात ती ताक इनकी जो जेर आ रही है ना, ये आ रही है नस्बी हालत। और अल मुस्लिमातु क्या है? ये रफई हालत है। और रफ़ई फेल हालत है। दराबत है, फेल दराबत है, चौथा सीगा है। और मिलाने के लिए ताक नीचे जेर दी जा रही है। ये बातें यहीं पे पक्की करें, क्योंकि आगे फेल जो है ना, उसमें बहुत कुछ पढ़ना है आपने थर्ड टर्म में। दरबल मुस्लिमान जालिमीना। दरबा दरबा फेल अल है, मुस्लिमानी। दो मुसलमानों ने, जी, अल मुस्लिमानी फाइल है, फाइल है, और अज़ालिमीना। अल ज़ालिमीना मफूल मंसूब। और दरबा फेल है। पहला और चौथा जी जब भी फेल का सीगा देखे ना, तो आगे फाइल देखा करें। अगर आगे फाइल ना हो तो फिर जमीर को बनाए। आगे जी इसम मरफू आ रहा है तो उसको फाइल बनाए। जी ठीक है, मैं कहती हूँ अच्छी सी तैयारी कर लें, ताकि आपका थर्ड टर्म बहुत अच्छा हो जाए। फिर इंशाअल्लाह। सिर्फ उस्तादा पास आप नहीं होना, करवा रही हैं? नंबर नहीं लेने, नकलें नहीं मारनी। मुझे पता चल जाएगा किसने नकल मारी है, ये उसको एग्जामिनर को पता चल जी। जाता है। अच्छा, कहीं ना कहीं वो डंडी मार जाता है ना फिर। दरबतिल मुस्लिमतान जालिमतैनी। अब देखिए, मैं दोबारा बोलती हूँ, दरबत अल मुस्लिमतानी अज़ालिमतैनी। अल मुस्लिमतानी फाइल है, मुसलमान। अल ज़ालिमतैनी मफूल। गुड गुड। अच्छा, अब आ गई आपके पास 31। ये 32, हाँ अच्छा सही है, 32 ही जी अब हमने कहा, 32 31 तो करेंगे। हमने कर लिया ना। जी ये 31 था। हाँ, 31 कर लिया हमने। तो आपने अलग से लिखना है, फेल, ये फेल है, और आगे फाइल, ये फाइल है, फिर मफूल है। सही करके टेस्ट देना है पूरा, चाहे टाइप करके करें, चाहे जैसे भी करें। अच्छा जी, जमायर बतौर मफूल, यही वाला हमारा टॉपिक है ना, ये वाला। खाली जगह पुर करें। अब आपके सामने तक स्क्रीन आ गई है, इसको देखें। ऐसे अफाल जिन्हें मफूल की जरूरत नहीं होती, डैश अफाल कहलाते हैं। लाजिम। लाजिम। लाजिम, जिनको मफूल की जरूरत नहीं होती, जो अपना मतलब फेल और फाइल से पूरा कर देते हैं। वो ज़हाबा अफाल जिन्हें जैसे जी। मफूल की जरूरत होती है, उन्हें क्या कहते हैं? मुतअद्दी। गोल हा पर डैश हरकत आएगी जब उसके पीछे हर्फ पर जबर या पेश होगी। उल्टी पेश। उल्टी पेश, उल्टी पेश आएगी जब पीछे पिछले हरफ पर जबर और पेश होगी। ये बहुत दफा करवाया मैंने। गोल हा जी पर डैश हरकत आएगी जब उससे पिछले हरफ पर जेर होगी। खड़ी खड़ी जेर। जेर। जी जी गोल हा होती क्या है? गोल ता होती है ना। जी जी गोल हा पर डैश हरकत आएगी जब उससे नहीं, ये हा जो है ना, ये हा हु जमीर है, हा नहीं है। ये गोल हा जो बोल रहे हैं ना, गोल हा, गोल हा कौन सी होती है? हु जमीर होती है। जी। जी ये गोल ता नहीं है, ये गोल हा है। गोल हा का मतलब है जमीर, जो गोल करके लिखी जाती है। हु जमीर की बात हो रही है, ये उसके कवानीन बताए जा रहे हैं। तो गोल हा जो है,
पर डैश हरकत आएगी जब उससे पहले हर्फ पर जेर होगी, तो फिर क्या आएगा? खड़ी जेर। मिसाल दे मुझे। बिही। बी फीही। बी ही, एक एक मिसाल सबकी याद रखें। लहू, पीछे जबर है, ठीक है ना, तो हु उल्टी पेश आएगी। पीछे पेश हो लहुम। किताबू, किताबू हु पेश आ रही है पीछे, तो हु उल्टी पेश आएगी। बी ही खड़ी जेर आएगी, ठीक है ना। गोल हा पर डैश हरकत आएगी जब उससे पीछे साकिन या होगी। साकिन या होगी तो कौन सी हरकत आएगी? फीही। फी खड़ी जेर ही। है। फी ही मिसाल लिख लें इसकी, ठीक है। और ये गोल हा को समझ ले, मैं बार बार बता रही हूँ, ये आपकी क्या है, हा जमीर नहीं है, ये हु जमीर है। सबको समझ आ गई ये हु जमीर की बात हो रही है? जी। ये उसी के कानून है। हा जमीर के कोई कवानीन नहीं होते, हु जमीर के कवानीन होते हैं। तो गोल हा पर डैश हरकत आएगी जब उससे पिछले हरफ को साकिन होगा। मिनहू पेश आएगी उस्ताद पेश। साहब। कौन सी पेश आएगी? मिनहू हाँ, सीधी सीधी पेश। पेश। सीधी पेश नहीं, आएगी, ठीक है ना। पेश जब सीधी साकिन पेश। होगा, जब साकिन होगा जी तो सीधी पेश आएगी, ठीक है। जी तो जैसे मिन हु, अन हु, है ना, अन हु। जी। तो अब इनकी मिसालें लिखेंगे तो फिर याद रहेगा ना। तो ये चारों मिसालें लिख लें, और ये सवाल जरूर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे। ये आखिरी मुझे वाला नहीं जो है पता, मैंने गोल आपका हा पेपर पर नहीं देखा हुआ है। जब पीछे साकिन होगा, ये जो आखिरी वाला है, हम्म। तो फिर गोल हा के ऊपर सिंपल पेश आएगी। अस, हाँ, यहाँ पर देखे ना, जब गोल हा पर साकिन हरकत आएगी, नहीं, गोल हा पर कौन सी हरकत लगाएंगे? जब उससे पिछले हरफ पर साकिन होगा। यहाँ तो पेश होगी ना। पेश सीधी लगाएंगे। सीधी पेश, सीधी पेश। सीधी पेश, हाँ जी। हाँ, उल्टी और पेश जो कब इससे आएगी? ऊपर वाला, हाँ, ये फर्स्ट वाले में उल्टी पेश ऊपर वाला आएगी। था जहाँ पे साकिन या था, वहां पर क्या आएगा? ये वाला। अच्छा, गोल हा पर डैश हरकत आएगी जब उससे पीछे साकिन या होगी। या है, ये या है मुतकल्लिम। जी। साकिन या है, जैसे फी ही की मिसाल देखें ना। उस्ताद इसमें तो सिर्फ खाली जेर आती है। हम्म। जैसे नहीं नहीं, अगर फी हम है ना। फी ही लिखते हैं फी तो ही उसमें खाली जेर होती है, उसमें खड़ी जेर तो नहीं होती। खड़ी जेर तो नहीं होती। तो खड़ी जेर कब होती है बताएं? ये नजर आ रही है। ये वाले में होती है। बी ही में। हाँ, गोल हा पर नहीं, डैश मैं हरकत आएगी मैं जब ये उससे पूछ पिछला रही हूँ, पर हाँ जी, जेर हो। ये सेकंड लास्ट पूछ रही हूँ, जब साकिन या पीछे आएगा तो हम्म। फिर हा पे क्या होगा? फिर खाली हा ही जेर। होगा। देखिए, आप सबकी मिसालें मिसालें लिखें। पहले वाली की मिसाल लिखें लहू उल्टी पेश के साथ, और दूसरी मिसाल लिखें किताबू हु उल्टी पेश के साथ। जबर की मिसाल भी मैंने दे दी लहू, और पेश की मिसाल मैंने किताबू हु दे दी। उल्टी पेश आएगी दोनों पे। अगर पीछे क्या होगा, हु जमीर से पहले जबर या पेश होगी तो उस पे उल्टी पेश आएगी। फिर आप आगे आ जाए, गोल हा पर डैश हरकत आएगी जब उससे पिछले हरफ पर जेर होगी। जैसे बी के नीचे जेर होती है, आगे हु जमीर लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? बी ही हो जाएगी। खड़ी जेर आएगी। खड़ी जेर, समझ आइए। जी जी। जी। अच्छा, तीसरी बात, गोल हा यानी हु जमीर पर डैश हरकत आएगी जब उससे पीछे साकिन या होगी। जैसे या साकिन क्या होती है? फी के अंदर देखें, या साकिन है ना, फी हरफ जर है। हाँ अब उसके हाँ। आगे हु जमीर आएगी तो उस पे कौन सी हरकत आएगी? सिर्फ जेर। खाली जेर। सिर्फ सिंपल सीधी जेर। 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 हाँ, सीधी सिंपल जेर। सिंपल जेर आएगी। यहाँ खड़ी जेर, ठीक है, यहाँ सीधी जेर। अब उल्टा पेश भी हो गया, खड़ी जेर भी हो गई और सीधी जेर भी हो गई। और गोल हा पर डैश हरकत आएगी जब उससे पिछले हरफ पर साकिन हो। अब इसकी मिसाल दे। मिनहू। मिनहू मिन हु मिनहू। और अनहु, अनहू। सीधी। ठीक है। सही है, समझ आ गया। जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन सब की मिसालें लिखने से याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा।
یہ ہو ضمیر کے چار کا ہو ضمیر پہ دیکھیں کیا آ سکتا ہے، الٹی پیش بھی آ سکتی ہے، کھڑی زیر بھی آ سکتی ہے، ہو ضمیر کے نیچے صرف سیدھی زیر بھی آ سکتی ہے اور صرف سیدھی پیش بھی آ سکتی ہے. یہ 4 پوائنٹ ہیں. صحیح ہے. اب ان کی مثالیں آپ کو میں نے بتا دی. اگر نہیں سمجھ رہا دوبارہ ریکارڈنگ کے یہ پارٹ سن لیجیے گا. اچھا جی، غلط صحیح جملوں کا تعین کریں. پڑھے، کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں گا. پڑھے. وہ ہر فعل فعل کے کے ہوں ہر فعل کے لیے مفعول ضروری ہے. ہوں یہ رانگ غلط. ہوگا. رانگ ہے. ہر فعل کے لیے تو ضروری نہیں ہے نا مفعول. جی نہیں کچھ نہیں. لازم ہوتے ہیں، فاعل سے ہی پورے ہو جاتے ہیں. جی جی. ہاں، جیسے خرجا نمبر وہ 2. نکلا، وہ نکل گیا. تو اب اس میں صحابہ. مفعول کے نہیں، ذہب، ہاں ذہبہ میں بھی. اسی طرح جلسہ وہ بیٹھ گیا، فریحہ وہ خوش ہوا، ہے نا. فریحت وہ خوش ہوئی، تو جی ان کو جی ضرورت نہیں ہے مفعول کی، تو جی. وہ پھر لازم ہوتے ہیں. تو یہ رانگ ہے. ہر فعل کے لیے فاعل ہر ضروری فعل ہے. کے لیے صحیح. ہر صحیح فعل ہے. کے لیے فاعل ضروری نہیں ادھر ہے نا، تو یہ رانگ غلط. ہوگا. ہاں ہاں، فاعل رانگ. ضروری ہے ضروری نا. نہیں. سوال تو غور سے ہاں پڑھنا ہے. دیکھیں اگر استاد آپ نے ضروری ہے، صحیح. غلط غلط. ضروری تو ہے، لیکن یہاں غلط ہے. نیگیٹو انہوں نے نہیں ہے نا. اسٹیٹمنٹ دی ہے نا، تو اس کو ہم، رانگ یہ کریں غلط گے. ہے. ہر فعل کے لیے فاعل ضروری نہیں. یہ غلط. غلط. ہاں یہی تو آپ نے یہاں ہی سوچنا ہے نا، کنفیوز یہی ہوتا تو ہے دماغ آپ بندہ. کا لڑانا ہے نا. ہر فعل کے لیے جی فاعل ضروری نہیں. تو یہ رانگ ہوگا. تو ہر فعل کے لیے فاعل ضروری ضروری ہوتا ہے. ہے. جی. جی جی. اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ہر فعل کے لیے فاعل ضروری ہے. مسٹ 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 ہے. کوئی فعل ہوتا ہی نہیں فاعل کے بغیر. دودھ ڈلا پڑا ہے، گلاس ٹوٹا پڑا ہے، تو کسی نے تو توڑا جی ہے نا. بالکل. ایسے تو جی نہیں جی ہو گیا. yes. اچھا، منصوب اور مجرور ضمائر ایک ہی ہوتے ہیں. صحیح. جی جی. ایک ہی ہوتے ہیں. منصوب ایک ہی ہوتے ہیں. یہی منصوب ضمائر جو ہوتے ہیں یہ بھی یہی مجرور بھی ہو جاتے ہیں. مجرور جی کہتے جی. ہیں جب پہلے حرف جر آ جائے یا یہ مضاف الیہ بن جائیں تو یہ مجرور ہو جاتے ہیں. پھر مثلا ہو ضمیر ہے، منصوب ضمیر ہے، لیکن وہ مجرور بھی ہو جاتی ہے. اب جی کتاب وہ میں وہ مضاف الیہ بن رہی ہے تو مجرور ہو رہی ہے. من ہو میں من حرف جر اس سے پہلے آ رہا ہے تو وہ من ہو جو ہے سیدھی پیش آئے گی. ٹھیک ہے. من ہو پہ تو ان ہو پہ بھی، تو یہ یہاں پہ بھی مجرور ہو رہی ہے کہ پیچھے حرف جر آ رہا ہے. اور اگر فعل کے ساتھ لگ جائے گی تو وہ منصوب ہی ہوگی. اسی طرح انا کے ساتھ لگ جائے گی، انا کا اسم بنے گی تو بھی منصوب ہی ہوگی. تو منصوب جی دو صورتوں میں آتی ہے، ایک تو مفعول کی صورت میں، ایک انا کی اخوات کے ساتھ لگنے کی صورت میں. اور مجرور بھی دو صورتوں میں ہی آتی ہے، یا تو حرف جر کے ساتھ یا پھر اسم کے ساتھ. کتابوں کی مثال یاد رکھیں. جب تک مثالیں نہیں یاد کریں گے نا تو آپ کو چیز سمجھ نہیں آئیں گی. یا جب اسم کے ساتھ آتی ہے تو آخری حرف پر زیر لگائی جاتی ہے. امیر کے ساتھ. یا آخری جب حرف پر اسم زبر کے لگائیں. ساتھ آتی ہے تو آخری حرف. پہلے سوال کو سمجھیں. یا کیا چیز ہے؟ یا متکلم ہے نا. جی جی. جی. ہاں، جب اسم کے ساتھ آتی ہے تو پیچھے اسم لگائیں، کتاب لگا لیں. کتابی. ہاں. اب میری کیا ہے تو آخری حرف پہ زیر لگائی جاتی ہے. جی کتاب کے آخری حرف پہ کیا لگائی جائے گی؟ زیر یا زیر. زیر لگائی جائے گی. کتابی. کتابی. یا متکلم جب بھی آئے گی اوپر پیش کو زبر کو بھی نیچے کھینچ کے لے آتی ہے، زیر بنا لے. یا متکلم جب اسم کے ساتھ آتی ہے تو آخری حرف جو اسم کا ہوگا اس پر زیر لگائی جاتی ہے. رائٹ ہے نا. جی ٹھیک ہے. اچھا، اگلا پڑھیں. جم جم. جمع مذکر کے صیغے کے ساتھ جب مفعول کو جگہ ضمیر منفصل کی ضمیر لائی جاتی ہے تو جمع مذکر کا الف گرا دیا جاتا کیا پڑھا ہے آپ نے؟ کچھ سمجھ نہیں آیا. فوزیہ میں آپ پڑھیں، پڑھتی دوسری ہوں. والی فوزیہ. جمع مذکر کے صیغے کے ساتھ جب مفعول کی جگہ ضمیر متصل کی ضمیر لائی جائے تو جمع مذکر کا الف گرا دیا جاتا ہے. صحیح. جمع صحیح ہے. مذکر کا صیغہ ذہن میں لائن. جمع مذکر کا صیغہ جیسے مسلمون، جمع مذکر کا جی صیغہ ہے نا.
जी जी कि सीगे के साथ जब मफूल की जगह आगे मफूल भी लगाना है, ठीक है। जी जमीर मुत्तसिल की जमीर लाई जाती है तो जमा मुजक्कर का अलिफ गिरा दिया जाता है। हमेशा जब भी आपका जमा मुजक्कर जो होगा वो मुजाफ बनेगा तो उसका क्या गिर जाएगा? अलिफ। अलिफ गिर जाएगा। अलिफ गिर जाएगा, नून गिर जाएगा। मुस्लिमूना में नून होता है। जमा मुजक्कर के तो सीगे ये के गलत साथ है। जब मफूल की गलत है। जगह हम्म। जमीर मुत्तसिल की लाई जाए, कोई भी जमीर ले आए तो ज़ाहिर है वो मुजाफिल बनेगी ना, इसम के साथ आ रही है। इसम फेल के साथ तो नहीं आ रही ना जब मुजक्कर का सीगा है। तो मुस्लिमूना अगर आपके पास है और आप आगे जमीर कोई लगा रहे हैं तो उसका मुजाफ बनने की वजह से उसका नून गिर जाएगा। अलिफ तो आता ही नहीं है जमा मुजक्कर में। हम्म। ये अगर यहाँ लिखा होता हुआ ना गलत। मुसन्ना के, अगर यहाँ मुसन्ना के सीगे में लिखा होता तो फिर अलिफ गिराते, फिर वहां भी नून ही गिराते, वहां भी कौन सी गिराते हैं आप? हम्म। ठीक है ना। मुसन्ना में भी हम्म। मुसन्ना में भी हम क्या करते हैं, नून ही गिराते हैं ना। मुसलमानी होता है ना तो उसका भी नून ही गिराते हैं। जी अलिफ तो जमीर होती है, अलिफ तो रह जाता है पीछे, जी वाव भी रह जाता है। जमा मुजक्कर का सेगा यानी फ़ालू भी आ सकता है ना उस्ताद सर? हाँ तो करें। फ़ालू। हाँ हाँ। हाँ। फ़ालू है ना, फिर उसके आगे एक अलिफ आती है तो उसका बिल्कुल अलिफ आती गिरा। है, बिल्कुल दादा हम आती जी। तो है। माजी की बात कर रहे हैं ना, तो हाँ हाँ माजी में तो अलिफ आता है जवाब मुजक्कर में, तो उसका हाँ। अलिफ गिरता है तो ना। अच्छा हो गया ना, आपको दोनों चीजों का पता लग गया। अगर इसम आएगा तो नून गिरेगा, जी अगर फेल आएगा, फर्ज करें का फरू आ रहा है और आपने आगे जमीर लगानी है मफूल के लिए, तो अब क्या करेंगे? अलिफ कराएंगे गिरा फिर। ना उसका अलिफ। हम्म हम्म। उसका अलिफ गिरा तो देंगे। सही होगा। अलिफ विकाया हम्म। जो होता है माजी के सीगे में, उसको गिरा दिया जाता है जब माजी। जमीर लगाते हैं। जी। हम्म। जी अब ये बात समझ आ गई। जी मसलन हम्म। आपके पास उस्ताजा कतबा, कतबा है, ठीक है ना, उसने लिखा और उसको लिखा, अब जमीर लानी है ना, उसको लिखा यानी कि खत को लिखा, तो हु जमीर लानी है तो आप कैसे करेंगे? हम्म। उस्ताजा जा आप लिख सकती हैं, स्क्रीन के ऊपर पेन है आपके पास, हाँ पेन साइड है। में ग्रीन कलर। हाँ लेकिन वो एक मसला भी होता है थोड़ा सा मेरे साथ, फिर ना मैं ले तो ले सकती हूँ। अ, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है आपको स्क्रीनशॉट ना। नहीं नहीं वो मेरे पास है। उस्तादा ये आज हमने पूरा 51 लेक्चर तक दोहराना है? नहीं नहीं, हम जितना भी कर सके अभी आधे घंटे में, और ठीक है जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उसके बाद तो। अभी तो इसको उसके मैं बाद जरा सा ना, बाकी कब होगा? बाकी हाँ जो होगा कल होगा, इंशाल्लाह। ठीक है। तो अभी मैं इसको लिखने की कोशिश करती हूँ। अच्छा जी, तो ये मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से, जैसे आपका तबू है ना आपके पास, नजर आ रहा है मेरा लिखा हुआ? जी 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 आ कतबू जी है। अब आपने इसमें मफूल की जमीर डालनी है, सही है। जी तो जमीर डालनी है तो यहाँ पे हु जमीर है। तो अब ये इस तरह थोड़ी लिखा होता है, जी कुरान नहीं। मजीद में अगर आप देखें तो इस तरह लिखा होता अलिफ कराए। है, अलिफ गिरा दे, गिराए। ये मतलब है इसका। जमा मुजक्कर के सीगे के साथ, ये जमा मुजक्कर का सीगा है, इसके साथ जब मफूल की जगह हु की जमीर लगाते हैं, कोई भी जमीर लाते हैं, मफूल की जमीर लाते जी हैं और वो मुतसिल होती है, मुतसिल ही है ना, जी और जी जी तो इसलिए जमा मुजक्कर का अलिफ गिर जाता है तो ये अलिफ गिरा दिया, ये मतलब है इसका, सही है। समझ में जी अच्छी तरह। तो इसम जी जब होता है तो उसमें अलिफ नहीं गिरता, उसमें नून गिरता है। यहाँ पे जमा जी इसमें उस्ताद। मुजक्कर अगर ये जी इसम मुस्लिम होता। मूना में नून। हम्म, अच्छा से उसके बाद दर्ज झैल अफ़ाल के साथ दर्ज झैल अफ़ाल के मफूल को ज़मायर की सूरत में तहरीर कीजिए। इसको मैं हटा देती हूँ। अच्छा अब मुझे बताएं वा अदा। हु हु हम्म, वादहु। उधर वादा हु। झैल अफ़ाल के मफूल को ज़मायर की सूरत में लिखिए, तो आप ज़मायर आगे ज़मीर डालिए गर्दान मफूल की। वा अदा तो वादा माजी हो गया ना, इसका अंदर फाइल क्या होगा, हुआ ज़मीर। अब आपने मफूल की ज़मीर लगानी है तो क्या लगाएंगे? वा हु अदा, लिखाएंगे। वाद हु हु लगाएं, वादा। हा लगाएं, हुम लगाएं, कोई भी जमीर लगा सकते हैं, लेकिन कौन सी जमीर लगानी है? मंसूब जमीर लगानी है।
منصوब और मुत्तसिल। मंसूब मुतसिल, तो मंसूब जमीर जो होती है वो साफ नजर आ रही होती है, ठीक जी है, तो वो क्या होगी, बादुहु वो या तो हु होगी या हा होगी या फिर हुमा होगी। अदा हुमा, उन दोनों, उसने वादा किया उन दोनों से। का भी और लगा सकते हैं उस्ताजा। वाओ, उससे पूरे वादा का। 14 वाह सरदार में से अदा, कुछ भी लगा सकते हैं। उस्ताजा हाँ इसमें पूरे 14 सीधे लिखने हैं क्या? हाँ, इसमें मंसूब जमीर के पूरे 14 सीगे लगा सकते हैं, लेकिन आपने कोई एक सीगा लगाना है, ठीक है। नहीं अच्छा, उस्ताजा, इसमें पूरी किरदार लिखनी थी, याद आ पूरी गया गर्दान जी। भी मैम करने हैं उसमें। पूरी गर्दानी लिखनी है उस्ताजा, क्योंकि इसमें अच्छा मार्क्स 14 वहां नंबर तक की है ना। साहब ना पूरी नंबर गर्दान अच्छा, करेंगे। पूरी जमाल की तहरीर वादा की है। वादा हुमा हम उसे। जी वादहु। वादा चले हाँ चलें, वादा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पूरी गर्दान लिखें, वाह अदा के साथ मफूल की जमीर लगा के पूरी गर्दान। जी जी अब लगाएं तो करें फिर, अब आपने बोल दिया है ना तो करें। वाह अदा हु, वाह अदा हुमा, ये इसके अंदर ही हाँ फाइल है, व वाह अदा अदा के अंदर। हम वाह अदा वादा हुम, हूँ। व अदा वादुका हा वादा हाँ का वाह अदा वादा हा, वादुका लास्ट वादुकी लेटर वादुकुमा वादुकुम। वादा हुमा। मेरी बहन सुने ना, गौर से सुने ना, आप आखिरी लेटर पे पेश क्यों लगा रही हैं, वाह अदू हुमा, आपने तो नहीं सीधा नहीं ही नहीं, खराब कर दिया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। वाह अदा को वाह अदा ही रहने दें, ये फेल है और माजी है, इसके अंदर ही फाइल है, और रजा को भी रजा का ही रहने देना है, रजा को जी नहीं करना। वो छठे सीगे उस्ताजा ये लिखने से आ में, जाएगा, छठे सीगे में लिखने जाके, से आ जाएगा। जी जी हाँ बताएं, कौन करेगा इसी गर्दान। रूबिया, अरूबा आप मैं करें करूँ वाह अदा। नहीं उस्ताजा, बहुत मुश्किल है ये। मुझे मैं करूँ लिख के मैं आएगा उस्ताजा, मैं खुद ये लिखूंगी लिख के, ये हाँ, ये बोल के नहीं आ सकता। वाह व अदा अदा हु, हूँ वाह अदा हुमा, व वाह अदा अदा हुमा हुम, व ना अदा हम हुम ठीक है, वाह व अदा अदा हा, हा वाद वाह अदा वादा हुमा, का वादा वाह की। अदा हुमा। वाह अदा, अब वाह अदा दाल के ऊपर से जबर नहीं हटानी, पूरी गर्दान में जी नहीं हटानी, जी ना पेश व लगानी ना अदा सुकून हुन्ना लगाना। वाह अदा हुन्ना, व वाह अदा अदा का का, वाह अदा व कुमा, अदा व वाह की अदा अदा कुम, कुमा हुम। व अदा वादा कुम कुन्ना वाह वादा अदा कुन्ना व की, अदा वाह अदा कुमा, व अदा कुमा हम्म, व अदा कुन्ना हम्म, न वादा कुम वादा वादा ना। नहीं वादई वादई आएगा उस्ताजा, वादा ना वाह कैसे अदा, आएगा? वाह अदा व ई नहीं, फेल के नीचे जेर नहीं ला सकते, बीच में क्या लगाते हैं। नहीं आ हाँ सकता या वादा ना 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 व व वादा अदा व नून अदा में नहीं। ही जब 13th या, किस तरह आएगा उस्ताजा? देखिए मैं नून आपको वका। बताती हूँ, ये देखिए ना, मैं आपको बताती हूँ, ये है वाह अदा। जी जी please। इस वाह अदा को आपने चेंज नहीं करना, इसके आगे जमीरें लगानी है, फिर हुमा लगा देंगे, फिर हुम लगा देंगे, सही है, वाह अदा पीछे चलता जाएगा ना। जी 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 फिर उस्ताजा मुअन्नस, 13 होता है हाँ, ना? मुअन्नस की सीगे में क्या हो जाएगा, वाह वादा अदा, वादा की। कुमा वादा कुन्ना ये पहले तीन सीगे है ना, अब मुअन्नस की सीगे में आ जाए तो वाह अदा हा हो जाएगा ना, वादा वादा हुमा। हाँ फिर हुमा हो जाएगा, फिर हुन्ना हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये वादा गायबी सीगे पूरे हो गए, वाह अदा का, वादा कुमा हम्म, का कुमा, अरुबा समझ आ रही है, वादा कुम कुम, जी 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 अब आपने इसको लिख के भेजना है मुझे, और यहाँ पर की आ जाएगा, यहाँ पे, वादा कुमा यहाँ पर सेम ये आ जाएगा, यहाँ कुन्ना आ जाएगा, सही है, ना। ये हुमा हाँ वाले सीधे सेम ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है आपका, 13th वादा, आगे क्या होगा, हाँ, हाँ अभी आपने, वादा ने ना बताया ना। हाँ ये उन्होंने बताया है ना उस्ताद? हाँ, वादा, वादा, बोले बोले क्या लिखेंगी, या लिख देंगी डायरेक्टली, नहीं 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 सादा क्या ना करना, लिखेंगे, उसके साथ नून भी व लगाएंगे अदा छोटी नी सी। हाँ, लिखेंगे। ना नहीं अभी लिखना, अभी ना नहीं लिखना, वो ये अभी तो अन्ना वाला सीगा है, वादनी, उसने वादा वादा किया मुझसे, और ये नूने विकाया है, इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है,
वादा नहीं। अगर आप डायरेक्टली या लगाएंगे तो ये या तो जेर चाहती है पीछे, तो फेल तो कहता है मैं तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं करूंगा, तुम नूने जी विकाया लाओ जी और जी उसके ऊपर लगाओ अपनी जेर। ठीक है, अब आपने जमा का सीगा लगाना है, यहाँ पे लगाएं अरूबा, वादा, वादा। वादना नाहनु वाला जी। ये गर्दान जो है ना, ये मफूल की आप लगा रहे हैं, बेसिक गर्दान जो होती है ना माजी की, उसके अंदर आप मफूल की लगा रहे हैं। तो वादा वो इसी तरह चलता रहेगा, उसमें वो जमीर फाइल है, उसने वादा किया उससे, उसने वादा किया उन दोनों से, उसने वादा किया उन सब से, उसने वादा किया उस लड़की से, उन दो लड़कियों से, उन सब लड़कियों से, उसने वादा किया तुझसे, जी तुम मर्द से, मेल से, और तुम दो मर्दों से, और तुम सब मर्दों से, और फिर उसने वादा किया किससे, तुम एक लड़की से, तुम दो लड़कियों से, और फिर सब लड़कियों से। उसने वादा किया मुझसे, और उसने वादा किया हमसे। हमसे। तो ये हु जमीर लगानी है। अब बाकी वाले आपने खुद बनाने हैं, ठीक है, रजा का। जी। रजा का हु, रजा का हुमा, रजा का हम, रजा हम्म। का हा, रजा का हुमा, चले अभी आपकी रजा का बारी से। हुन्ना, रजा का का, हम्म। रजा का कुमा, हम्म। रजा का कुम, हम्म। और रजा का की, रजा का नी, और रजा का नहीं, ना। रज़क़कुमा, रज़क़कुन्ना। एक दफा लिख लीजिएगा ना मफूल की जमीर, पूरी मफूल की जमीरें उल्टे हाथ वाली आपको आती है ना, वो वादा रजा के आगे लगा देनी है। जी ठीक है, जी और किसके आगे लगानी है? तीसरा क्या है? दो ही है ना, बस दो के आगे लगा जी देनी। बस। दो ही है उसके मुश्किल तो साथ। नहीं है। इसके अंदर जो जमीर है ना हुआ, वो फाइल बनेगी। उस एक मर्द जी ने, उस एक ने रिज्क दिया उसको, उन दो को दिया, और वो हुआ कौन है? अल्लाह ताला है। रिज्क तो वही देते हैं ना, वादा तो कोई भी बिल्कुल। कर सकता है, लेकिन हुआ जमीर यहाँ पे अल्लाह ताला के लिए होगी। अच्छा, दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। वो इसम जिस पर फेल वाक़या हो। मफूल क्या होता है? फेल वाक़या हो। मफूल वो इसे जिस पर फेल वाक़ई हो। हम्म, वो इसम जो फेल से मुताल्लिक हो, नहीं। जिस पर फैल जिससे, वाक़ा हो। जिससे देखिए, वाक़या हो। तो इसम इस पर फेल वाक़या होता है। जिस पर फेल वाक़या हो, जिससे फेल वाक़या हो, वो क्या होता है? फाइल। जिस फाइल होता है। और वो इसम जो फेल से मुताल्लिक हो, वो क्या होता है? मुताल्लिक के फेल होता जी मुतालिक। मज। जी है। उससे पहले हरफ जर आता है ना। तीन चीजें होती है ना, जी एक फेल होता है, फिर फाइल होता है, फिर मफूल होता है। मफूल क्या होता जी, है? वो इसम जिस पर फेल वाक़या होता है। ये वाक़ा हो। हाँ, मसलन हामिद ने आम खाया, तो आम क्या है? उस पर फेल वाक़या हो रहा है ना, जी जी है ना, हाँ। ऑब्जेक्ट जिसे हुए हो। कहते हैं। हाँ, और फाइल कौन है? हामिद। और फेल क्या है? खाना। हाँ, खाना। तो उसके ऊपर हरकत भी फिर वैसी लगानी है, फाइल पे दम्मा लगाना है, मफूल पे जबर। अगर आपने मफूल पे पेश लगा दिया आम के ऊपर, तो फिर क्या होगा? आम हामिद को खाएगा ना। जी जी जी। ऐसी ऐसी हरकतें कभी नहीं करनी, ऐसी हरकतें लगानी भी नहीं कभी। इसलिए आपको ये सब ग्रामर पढ़ाई जा रही है कि आप हर हर ख्याल रखें कि फाइल के ऊपर क्या लगाना है, मफूल के ऊपर। फाइल मफूल पहले भी आ सकता है, फाइल बाद में भी हो सकता है, लेकिन पहचाना कैसे जाएगा? वो अपनी हरकत से पहचाना जाएगा। आराम से। एराब एराब। मफूल अगर जमीर की सूरत में हो तो जमीर, तो जमायर इस्तेमाल होंगे कौन से वाले? मफूल की सूरत में मंसूब। मफूल मंसूब। मंसूब। अभी हमने ऊपर गर्दान पूरी की है, ठीक है। जी। या या जब फेल के आखिर में आए तो अपने साथ क्या लाती है? नून 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 उन्होंने लेके उठाया। आएगी। वाव नहीं लाती, फा नहीं लाती, नून लाती है जब फेल के आखिर में आती है। इसम के हम्म, आखिर में आए तो जरूरत नहीं होती, किताबी। इसम जो होता है ना, मेरी वो किताब। उस, हाँ, जो इसम होता है वो उसकी डिमांड पूरी करता है। वो कहता है ठीक है, लगा ले मेरे नीचे जेर। लेकिन फेल उसकी डिमांड पूरी नहीं करता, वो कहता है मेरे नीचे खबरदार तुमने जेर लगाए, अपना नूने विकाया लाओ। सिर्फ एक जमीर के लिए कहता है, या मुतकल्लम के ही नखरे होते हैं ना, बाकी किसी के नखरे भी नहीं होते। तो वो कहती है कि मुझे जेर चाहिए पीछे, तो वो कहता है नहीं, तुम अपनी नूने विकाया लाओ, उसको लगाओ, और फिर तुम नून लेकर आएगी, ठीक है। गर्दान में फाइल की जमीर की पहचान ये है कि उससे पहले वाले हरफ पर, सुकून होगा। हाँ, गर्दान में फाइल की जमीर जो होगी कि उसकी पहचान ये है कि उससे पहले वाले हरफ पे जबर होगा, जेर होगा, हम्म, सुकून होगा। सुकून। जेर तो हो ही नहीं फाइल की सकता, जमीन। जेर तो हो ही नहीं सकता फेल के नीचे, है ना। उस्ताद सोचें सोचें।
مشکل نہیں ہے۔ استاذہ یہ نہیں پتا نا کہ گردان کی کون سی بات ہو رہی ہے، کون سی مضارع کی ہے یا ماضی کی ہے؟ اگر ماضی کی ہے تو اس میں تو جزم بھی زبر چھٹے ہوگا، سیگے سے کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوگا، سکون زبر تو اسٹارٹ ہو جاتا ہے، زبر تو صرف پہلے سیگے میں ہوتا ہے نا فائل۔ سکون آتا اسٹارٹ ہو ہے، جاتا ہے۔ سکون۔ ہاں سکون ہوگا۔ پہلے 5 سیگوں میں زبر ہوتا ہے، اس کے بعد چھٹے سیگے سے سکون شروع ہو جاتا ہے۔ تو فائل کی ضمیر جی کیسے پہچانی جاتی ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ جعلنا، نا تو نا ضمیر سے پہلے سکون ہے نا، وہ فائل جی بن رہی ہے۔ جعلتم، تم انتم ضمیر سے پہلے سکون ہے نا، تو سکون کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ صحیح ہے، سکون ہوگا، زبر نہیں ہو سکتی، زیر نہیں ہوتی، زیر فعل کے نیچے آتی ہی نہیں ہے، اور زبر صرف پہلے سیگے میں ہوتی ہے، وہ بھی اس کے اندر ہڈن ہوتا ہے فائل، تو سکون ہی ہوگا۔ گردان دیکھیں نا، فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلنا، پہلے 5 سیگوں میں تو زبر ہی آتی ہے، لیکن چھٹے سیگے سے سکون ہو جاتا ہے۔ فالتا، فالنا، فالتا، فالتما، سب میں ضمیر سے پہلے سکون ہو جاتا ہے، فائل سے پہلے۔ فعل کے ساتھ متصل نہ کی ضمیر سے پہلے، فعل کے ساتھ متصل نہ کی ضمیر سے پہلے حرف پر اگر زبر حرکت ہو تو وہ ضمیر کیا بنے گی؟ مفعول۔ مفعول۔ مفعول بنے گی۔ اگر جی کیونکہ سکون اس میں ہوگا، ہوا فائل ہے۔ اگر سکون ہوگا تو وہ نا ضمیر فائل بنے گی، اور اگر نا ضمیر سے پہلے زبر ہوگی تو وہ مفعول بنے گی۔ جی کیونکہ نصرہ میں ہوا فائل ہوتا ہے نا، نہ لگا دیا تو وہ کھانے والی مفعول دعا بن یاد جائے گی۔ رکھے نا، جعلنا اور جعلنا، نا ضمیر سے اللہ سے، نا ضمیر سے پہلے زبر آ رہی ہے، وہ مفعول کی ضمیر ہے، اس نے بنایا ہم۔ ٹھیک ہے، ابھی وعدہ، وعدہ آپ نے رضا کار کیا نہیں ہے، تو اس سے پہلے زبر آ رہی تھی تو جی وہ مفعول کی ضمیر تھی نا۔ آخر نا ضمیر سے، ہر ضمیر سے پہلے زبر آ رہی تھی وعدہ کے اوپر، تو وہ ضمیر جو آگے لگا رہے تھے وہ مفعول بن رہی تھی نا۔ جی وعدہ، وعدہما، وعدہم، وہ ساری مفعول بن رہی تھی، اور اگر انہی ضمیروں سے پہلے سکون آ جائے تو وہ فائل بنتی ہے۔ جی وعدنا، وعدتا، وعدنا، جمع کا نون کا، تو سب سے پہلے سکون آ رہا ہے، تو سکون ہو تو پھر کیا ہوتی ہے؟ گردان میں فائل کی ضمیر کی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پہ سکون ہوتا ہے، اور مفعول کی کیا پہچان ہے؟ اس پہ زبر ہوتی پہلے زبر ہو۔ ہے۔ دیکھیں 2 لفظ ہوتے ہیں نا ہمارے پاس، ایک ہوتا ہے جعلنا اور ایک ہوتا ہے جعلنا۔ صحیح ہے، یہ مجھے دیکھنا، مجھے آج اس کے اوپر میں لکھ نہیں سکتی۔ یہ ہے آپ کا، اب مجھے اس میں جعل، بتا، ہاں ایک ہے جعلنا، جیسے رضا جی کا نا، وعدنا، ہے نا۔ اب اس میں نا ضمیر سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہ نا ضمیر کیا بنے گی؟ مفعول۔ مفعول۔ مفعول بنے گی۔ اگر اسی سے اس کو میں جعلنا کر دوں، تو یہ فائل بن جائے گی۔ ترجمہ کر کے دیکھیں نا، اس کا ترجمہ کریں اور اس کا ترجمہ کریں۔ ہم نے جب ان کو اللہ کیا ہوگا کہ اس نے بنایا ہمیں، اس نے نے اور بنایا، بنایا، ہوا جعلنا ضمیر، ہم اس، نے بنایا۔ ہاں ہم نے بنایا، تو اس میں نے کا ترجمہ آ رہا ہے، یہ فائل بن رہی ہے سکون والی، اور یہ جس سے پہلے زبر آ رہی ہے اس کا کو میں ترجمہ ہو رہا ہے، اس نے بنایا ہم کو۔ تو یہ نا ضمیر سے پہلے، کسی بھی ضمیر سے پہلے زبر آ جائے تو وہ مفعول بنے گی، اس سے پہلے سکون آ جائے، یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، مضارع کی بات نہیں ہو رہی، ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ تو ماضی کے جتنے بھی صیغے ہیں ان میں اگر پیچھے زبر آئے گی تو وہ کیا بنے گی؟ مفعول بنے گی اگلی ضمیر، اور اگر سکون آئے گا تو وہ فاعل بنے، یہ پوچھی یہاں پہ بتا رہے۔ اچھا جی، آگے ہے آپ کا، پھر اب بھی کرنا ہوتا ہے اس کو، اصل میں اس کی یوز ٹو نہیں ہوں اتنی، میں اپنا فارمیٹ یوز کرتی ہوں نا، وہ ایزی رہتا ہے میرے لیے۔ اچھا اب آگے دیکھیں، جی یہاں پہ مجھے ذیل قرآنی آیات میں ضمائر متصلہ کی شناخت کیجئے، اور یہ بھی بتائیے کہ ضمیر مجرور واقع ہوں گے یا منصوب، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہاں پہ کون سی ضمیر ہے، پہلے تو یہ بتانا ہے آپ نے۔
सदा का जमीन यहाँ पे मफूल है का क्योंकि ज़मीर है और मुत्सिल है। मफूल है। हम्म, मुत्सिल है। वसिया का फतह का जमीर है और क्या बन रही है? मजरूर है, मफूल मंसूब है, मरफू है? बताइए। मंसूब मंसूब है। मंसूब, मंसूब है। शाबाश। नहीं सादा मजरूर है, इसम की बात आ रही मुजाफ है, इलैह बन रही है मुदाफ ना। इलैह बन रही है, मजरूर है ये। मजरूर मुत्तसिल है। पीछे फेल थोड़ी है, जी ये कौन सा फेल है? मुजारे है, माजी है, कौन सा है? अमर है, कौन सा फेल है ये? नहीं इसम है हाँ, सादा ये। इसम है। तो इसम पीछे होगा तो जमीर मजरूर होगी, और फिर जर पीछे होगा तो जमीर वही मंसूब जमीर मजरूर होगी। और अगर पीछे फेल होगा तब ये मंसूब होगी, या इन्ना वगैरह खवातु होंगे तो तभी मंसूब जी होगी। जी जी। अच्छा, अब इसमें सही। जमीर देखें। माँ माँ अरसल अरसलना का उस्ताजा नबी। ये का जो है मफूल मुत्तसिल बन वाले रहा में है, मफूल बन काजमीर रहा है। है, और ये क्या बन रही है? मंसूब मफूल मंसूब। पूरा नाम बताएं, मंसूब मुत्तसिल मंसूब मुत्तसिल मफूल बन रही है। मफूल। अच्छा जना, और तो कोई जमीर नहीं ना? चलिए आगे चलिए। काला मन खतबुकुमा, अब इसमें जमीर बताएं। मजरूर मुत्तसिल कुमा कुमा जमीर मजरूर मुत्तसिल क्यों है? बताएं, वजह बताएं। मुजाफ इलैह के बाद आ रही है, मुजाफिले बन रही है, मुजाफिले के बन बाद रही आ रही है है। जी, मुजाफ इलैह बन रही है। बन रही है, मुजाफ के बाद आ रही है, या इसम के बाद आ रही है। ठीक है ना? मुजाफ जी इसम ही होता है ना? जी मुजाफ जमीर तो कभी भी नहीं होता। कभी हुआ है जमीर मुजाफ जमीर बन रहा हो? नहीं। नहीं, इसम ही बनता है। तो जमीर से पहले अगर इसम आ जाए तो वो हमेशा मुजाफ इलैह होती है, और कुछ मुरकब इजाफी के अलावा कुछ बनता ही नहीं। अगर पीछे फेल आ रहा हो तो फिर मफूल बनती है। हरफ जर आ रहा हो तो भी मजरूर बनती है, और पीछे इसम आ रहा हो तो भी मजरूर मुत्तसिल। तो मुत्तसिल भी लिखना है और मजरूर भी लिखना है। यहाँ पे देखें, खातबहुम। हमारी जाहिलूना फेल के बाद आ रही है ये तो जमीर मफूल है। मफूल है, मफूल इसको नाम क्या देंगे? मफूल तो बन रही है ये वाली। मफूल मुत्सिल और मुत्तसिल। हाँ, तो इसका फेल का फिर फाइल क्या होगा? जा जी जाहिलूना जाहिलूना, क्योंकि पहले सीगे में और चौथे में क्या होता है? फाइल आगे भी आ सकता है। अब जी ये देखें, सीगा पहला और चौथा नहीं है तो इसका फाइल साथ ही लगा हुआ है। जी जी वाओ वाव। वाव है, क्योंकि ये पहला और चौथा सीगा नहीं है। जब पहला और नहीं। चौथा सीगा होता है तो आगे भी नजर दौड़ानी होती है, वरना आप गलती कर देंगे। जब भी फेल का पहला सीगा देखें, आगे नजर मारे, फाइल आगे तो नहीं आ रहा। देखने में तो ये जबर वाला लग रहा है ना, जी मंसूब लग रहा है, लेकिन असल में क्या है ये? अरबी हालत क्या है इसकी? वाओ और मरफू है। वाओ एराब है इसका, मरफू है। ऊना साउंड मरफू हालत होती है, ऊना साउंड मरफू हालत होती है। जी। वाव फाइल नहीं है यहाँ पे। ये वाव नून रफ़ई रफा की, हालत है ना। हाँ, रफा की अलामत है ना। इसको आप जी मफूल तो नहीं बनाएंगे ना, जायलूना को जी। फाइल ही बनाएंगे। मफूल, ये जबर दे के मफूल नहीं बना देना, ये रफई हालत है। जायलीना होता तो वो मफूल बनता, लेकिन मफूल तो यहाँ पहले ही आ गया। अब देखें, जब जमीर आपकी मफूल बनती है ना, जमीर और फाइल इसम जाहिर होता है, तो उस जमीर को फेल के साथ पहले ही जाके जोड़ देते हैं। और ऐसी सीक्वेंस, सूरत में तो मफूल पहले आ जाता है और फाइल हाँ, बाद में। सीक्वेंस टूट जाता है ना। वो जो एक जी सीक्वेंस होता है क्या, फेल फाइल मफूल, तो वो इस सूरत में आपका चौथी सूरत में आके, तीन सूरतों में सेम रहता है, चौथी सूरत में आपका ये क्या होता है? सीक्वेंस टूटता है। हाँ, सीक्वेंस टूटता है। ये फेल है, ये मफूल है, और ये फाइल। इसके जी अंदर वही फाइल है। ये बहुत पते की बातें हैं। ये मफूल है, इस फेल का मफूल है, नॉट दिस वन। इसका मफूल ये रहा, इसका फाइल ये रहा। ये चीजें पहचानने ताकि आप कुरान मजीद का तर्जुमा सही खुद से कर सकें, रट्टे से बचें। या अय्युहन्नासुबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। अब जमीरें बताएं कौन कौन सी हैं? ये वाली जमीर कौन सी है? कुम जो वाव है जो मजरूर फाइल बन रही है उस्ताजा ये आबुदू। ये मरफू मुत्तसिल है, फाइल है। ठीक है। हम्म। और इसके जी बाद जी। रब्बा कुम कौन रब सी जमीर है?
ये मंसूब है। मजरूर मुदाफ मजरूर इलैह की जगह मुत्तसिल पे है, आ रही है। बिल्कुल। रब्बा कुम, रब्बा इसम तो फेल तो नहीं है ना, इसम है। नहीं, अच्छा, इसम है, खला का कुम में कुम जमीर क्या है? मफूल है, मंसूब मंसूब मंसूब। मंसूब मुत्तसिल जमीर है, हम्म, मफूल बन रही है। ये फाइल नहीं बन सकती, इससे पहले जबर आ रही है, जी ठीक है ना। तो वैसे भी ये फाइल तो मरफू जमीरें होती हैं, तो मंसूब जमीर है, ये तो फाइल कभी भी नहीं बनेगी। अच्छा जी, उसके बाद ये आखिरी मैं करवा देती हूँ, अभी क्या है ये, हाँ, अल्फाज को समझकर फर्क बयान कीजिए, मानी भी तारीफ कीजिए, और क्या है, ना जमीर की अराबी हालत बयान करें। यहाँ पे ना जमीर की अराबी क्या हालत है, और यहाँ पर क्या हालत है? उस्ताद, नसर नाम में फाइल है और हम्म, नसर नाम में मफूल है, हाँ, मफूल पीछे है। ना, तो ना मरफू है। जमीर से पहले हाँ सुकून ऐसे ही आ है। जाए तो फाइल, ना जमीर से पहले जबर आ जाए तो मफूल। मफूल। किसी भी जमीर से पहले जबर आ जाए, ठीक है, वो आपकी मफूल ही बनेगी। किसी भी जमीर से पहले सुकून आ जाए तो वो आपकी फाइल बनेगी। सिर्फ ना की बात नहीं हो रही। अगर इसको मैं जी, नून, ये औरतों वाला नून कर दूं, नसरना कर दूं, तो भी क्या होगा? फाइल ही बनेगी ना। जी, नसर जी, ना कर जी दूं, जी ना कर दूं, तो जी। भी फाइल बनेगी। और नसरा, नसरा आगे मैं क्या कर दूं? ना कर दूं, नून जबर वाली लगा दूं। नसरा ना, नसरा ना, नून वो पेट वाली लगा दो, गोल वाली। तो कि उसने मदद की उन सब औरतों की, नसरा ना। उस वक्त भी वो ना जमीर क्योंकि पीछे जबर आ रही है, तो वो मफूल ही बनेगी। मफूल ही बनेगी जी। हाँ, तो जमीर से पहले जबर आए तो वो हमेशा मफूल बनेगी। वहां पे कौन सी जमीर आती है? ना जमीर, नून पे जबर वाली जमीर तो वो होती है ना, वो तो फाइल होती है। हमने तो मफूल वाली जमीर लगानी है। तो हम क्या लगाएंगे वहां पे? ना तो नहीं लगाएंगे ना। कौन सी जमीर लगाएंगे? नसरा ना नहीं, पूरी जमीर लाएंगे, पूरी जमीर हुन्ना लाएंगे वहां पे। नसरा सरहुन्ना हुन्ना, मंसूब जमीर के उसमें जाए ना, वहां से जमीर उठा के लाएंगे हम मफूल बनाने के लिए। जी। नसरहुन्ना। नसरा हुन्ना लगाएंगे, उसने मदद की उन तमाम औरतों की। तो मंसूब जमीर हुन्ना है। नून जबर ना, तो वो तो फाइल बनने वाली जमीर होती है, उससे पहले तो हमेशा सुकून आता है, नसर ना। जब उसको आपने मफूल देने आगे, तो आप क्या करेंगे? फिर आप उसमें हुन्ना लगाएंगे। उस एक मर्द ने उन सब औरतों की मदद की। तो अब यहाँ पे तर्जुमा करेंगे तो खुद ही आपको चीजें वाजिया हो जाएंगी। उन दो मुजक्कर ने उन दो मुजक्कर की मदद की। दो दो मुजक्कर नसरा हैं। हुमा, हम्म, नसरा नसरात दो मुजक्कर ने मदद की, हुमा हम्म, उन दो मुजक्कर, हम्म। नसरा हुमा। नसरा हुमा, बाद ये ऊपर भी हम कर चुके हैं ना, नसरा हुमा। जी उन दो मुजक्कर जी ने, नसरा हो गया, उस एक मुजक्कर ने मदद जी की तो नसरा हो गया, हुमा उन दो की मदद की। और उन दो मुजक्कर ने, फाइल जो है वो दो मुजक्कर है, और मफूल भी दो मुजक्कर है। तो मफूल की जमीर पूरी जमीर आएगी, और उसमें नसरा में सिर्फ अलिफ आएगा, ठीक है ना। नसरा के अंदर हुआ जी, जमीर होती है, नसरा उसके अंदर हुमा जमीर है। तो नसरा आगे क्या आएगा? हुमा। हुमा। उन दो ने उन दो की मदद की, तूने मदद की मेरी, नसरतनी। तूने मदद की, नसर तो नी नसरता नसर तनी। नी, वेरी गुड, नसरतनी। नसरतनी। या से पहले आपने क्या करना है? नून लगाना है, नून लगाना है। जब भी या की जमीर आएगी ना, तो फिर आपने नून लगाना है। तुम सब औरतों ने मेरी मदद की। अब सब औरतों ने मेरी मदद की। नसर नसर तुहन्ना। तुन्नानी, तुम, नसरत नसर तुम, हम्म, नसर नसर तुन्ना तुमनी, नी, और क्या? तू नी नसर नी तुमना नी। नसर तो तुन्ना हाँ, ये नी। भी देखना है, उन सब औरतों ने तो नहीं है, यहाँ पे उन दो मुजक्कर थे ना, तो उन औरतों को देखना है पहले, ठीक है। अगर तुम सब औरतों ने मदद की तो ये मुखातिब का सीगा है, गायब का जी नहीं है। तुम वाली आएगी ना सादा, तो इसमें तुम हाँ, वाला नसर सीगा। तुनन्नी। नसर नसर तुन्ना तुनन्नी। नी, नी नसर तुन्ना नी, तुम सब ने मेरी मदद की,
ठीक है। और अगर उन सब औरतों ने मदद की मेरी तो फिर क्या हो जाएगा, नसर ना नी, हाँ उन सब औरतों ने मदद की, नसर ना, उन सब औरतों ने मदद की मेरी, नी, अब यहाँ पे तुम मैं तो हम नसर तुम ना नी, उन सब औरतों ने हमारी मदद की, नसर हुन्ना ना नसर ना नसर नसर उन सब हुन्ना, नसरहुन्ना ना, नसर हुन्ना ना नसर हुन्ना क्यों करा रही हैं, हुन्ना जमीर से पहले सुकून नसर लगाए ना। ना नसर न- नसरना, नसर ना और उसके आगे ना आएगा। हमारी मदद की ना, ठीक है, नसर ना। इनको फिर कीजिएगा, ठीक है, जितना इन पे गिरफ्त ज्यादा होगी ना आपकी, इतनी ज्यादा आपकी ग्रामर के रूल्स पक्के होंगे। जी 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 जी। उन सब मर्दों ने तेरी एक मुन्नस की मदद की, सब मर्द हैं और एक मुन्नस है। नसरू हम्म और की नसरू हम्म नसरू की जी नसरू ती। ती, ती क्यों आएगा, सेकंड एक मोनस, एक मोनस है ना। तो इसको मफूल एक बनाना मोनस है, हाँ से इसको मफूल बनाना है ना, मफूल है ना, ती एक मुन्नस ती मफूल है, तो की आएगा, ती ती तो आएगा, फाइल होता है। हम्म, की आएगा, नसरू की। की आएगा। देखिए किया मफूल, है। ये जो बाद में है ना, इनके लिए मफूल की जमीरें लानी है लेफ्ट हैंड वाले नसर कॉलम में से। यहाँ क्या होगा, नसर की हम्म जी की नस की, नसरू, अब रू जब आपने किया तो अलिफ हटा देंगे, ठीक है, नसरू, वो में वो के बाद अलिफ हटाएंगे और आगे की लगाएंगे। उन सब मर्दों ने, नसर नसरू, उन सब मर्दों ने तेरी एक मुअन्नस की मदद की, तो नसरू लिख के अलिफ गिराएंगे और फिर की लगाएंगे, नसरू की। तो उस्तादा जब हमने ये पहला वाला किया था ना, उन दो मर्दों ने, इसका अलफ बरकरार रहेगा, यस हाँ, क्योंकि दो न, मर्द हैं, दो मर्द है ना, तो नसरा ही आएगा ना। जी अगर आप नसरा जी लिखेंगी तो वो क्या हो जाएगा, वो एक मर्द एक हो जाएगा, बाय एक मर्द ने जी दो दो मुजक्कर की मदद की। अगर नसरा करती है तो दो मुजक्कर ने, अगर नसरू कर देती है तो उन सब ने। अब यहाँ पे अलिफ हटाएंगे जी अच्छा जब, हाँ, ठीक सिर्फ जमा में अलिफ हटाएंगे, मुसन्ना में नहीं हटाना। देखिए ये ने से पहले पहले जो आ रहा है ना, ये तो फाइल बनेगा, ठीक है, और जो ने के जो को के साथ आ रहा है या ने के बाद आ रहा है वो मफूल बनेगा। तो मफूल के लिए आपने लेफ्ट हैंड वाली जमीर लानी है, छोटी जमीरों में से उठा के लानी है, और फाइल की जमीर जो है ना वो इसमें लगानी है, पहले वाले में, ने वाले में। और कभी कभी इसम जायद फाइल भी आ जाता है, उसमें भी ख्याल रखना। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे औरतें लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने निसा लगा देना है उठा के, नहीं ऐसा तो नहीं है ना, निसा तो नहीं नहीं आएगा ना। ये इसका नहीं मतलब ये है कि मुअन्नस की जमीर लानी है। यहाँ पे ये भी जी लिख सकते हैं, तुम सब मुअन्नस ने मेरी मदद की, हुन्ना होगा, हुन्ना। जी उन सब मुअन्नस ने हमारी मदद की। जैसे यहाँ जी मर्दों जी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ मर्दों में आपने उन सब मुजक्कर ने तेरी मुअन्नस, इसके इसका बनाए, उन सब मर्दों ने तेरी एक मुअन्नस की मदद की। नसर नसरु नसर की, नसर की आप तो एक तो उनको देखना है, गायब के सिगों में जाना है, ठीक है, तुम सब मर्दों में और उन सब मर्दों में फर्क है। तो ये आपका नसरू बन गया, और उसके बाद, नसर की, हाँ, नसर की एक मुअन्नस की मदद की, सही है। जो तो यहाँ औरतें थी, यहाँ पे मर्द हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपका 33 लेक्चर आगे। आज हमने कितने कर लिए, 28, 29, 30, 31, 35 कर लिए। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। इतने ही रहने दे, फिर रिकॉर्डिंग लंबी हो जाती है। जी बस, हाँ जी हाँ, बस मैं कल बिल्कुल इतना ही कराऊंगी, कर 5 लिया कल करवा दूंगी। टेस्ट कब जी है, 15 को या 10 को, 15 15 को, तो हमारे पास 15 टाइम है, ठीक है। जी तो जी फौजिया चूंकि यहाँ पे है, तो तो फिर हम फौजिया वाली क्लास भी ले लेंगे, कोई मसला नहीं है, मंडे वाली भी जी कर आप लेंगे। बता दें कि ये डेली हुआ करेगा 3 बजे। मैं ग्रुप में मैसेज करूंगी। कल जी तो मेरी होगा तो ना डेफिनेटली, प्लीज मेरी डेफिनेटली संडे को नहीं होगा, संडे को नहीं होगा, ठीक है, मंडे को होगा, और कल भी होगा। जी जी अ, प्लीज, मैं मंडे ट्यूसडे ना 2 दिन 3 बजे मेरी क्लास होती है, बड़ी जरूरी, मैं खुद लेती हूँ। तो मंडे ट्यूसडे 2 दिन कोई टाइम फर्क हो सकता है। फर्क क्या, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी ग्रुप में, आप सुन लीजिएगा, ठीक है। अच्छा
टाइम चलिए ठीक है। टाइम फर्क जो है 1 घंटा पहले से, लेकिन मैं सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही आपकी वजह से, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर ये कल भी 3 बजे होगा और मंडे हाँ, को भी 3 बजे? कल आप ले सकती हैं। जी जी इंशाल्लाह। हाँ, तो कल आप आइए, और फिर संडे को तो है ही नहीं, और मंडे को मैं फिर जो है वो आपका कर लूंगी, सही है। जरूर मंडे डालिएगा। मंडे को फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी, वैसे मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी। ठीक आपका है, जो और मंडे ग्रुप है तक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। देखें 15 तक ही जाके शायद कंप्लीट हो, क्योंकि अभी कितने लेक्चर हैं आप देखें ना, 51 तक जाना है। हाँ वो है ना। हम्म, और उसमें भी डालिए। अभी आज 5 हुए, कल 5 होंगे, 6 कर लेंगे, 7 कर लेंगे, जितने मैक्सिमम कर सके। आज पहला दिन था थोड़ा, तो सही है। ताजा वैसे तो और मीटिंग भी एमसीक्यूज हुआ ना बेस्ड उसका आएगा 5-6 टेस्ट, मिनट। उन्होंने बताया हुआ है क्या बताया हुआ है? कि पूरा एमसीक्यूज बेस्ड होगा। हाँ, इंशाल्लाह कर लेंगे, डोंट वरी, पूरा वीक भी यूज कर लेंगे, कुछ नहीं होता, सही है ना। तो आप इंशाल्लाह अपनी तरह चलिए, अपनी जगह जज़ाकल्लाह पे, खैर। अपनी जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं उनको एटलीस्ट उनमें गलतियां नहीं करनी है अभी। देखिए, आपको रिवीजन की जरूरत थी कि नहीं, जरूरत नहीं थी, मुझे बताएं। बहुत बहुत जरूरत थी। जरूरत थी इसका बहुत तो। जरूरत बहुत है। ज्यादा जरूरत थी। हाँ, नंबर तो आपके कम भी आ गए, आपको अगले दर्जे में 80 तक तो आने चाहिए, लेकिन आपको अगर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ आता नहीं है और आपने इधर उधर से नकल मार के टेस्ट कर लिया और या तुक्के मार लिए, तो उससे फायदा नहीं है आपको, क्योंकि थर्ड पार्ट फिर आपका कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो इसलिए ये क्लास रखी थी कि आपको अच्छी तरह इसको पास करने, और पूरे यकीन के साथ कि जो कुछ भी हम कर चलिए रहे हैं वो हमें समझ भी आया हुआ है। जी जी। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है, जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह। खैर। तो क्लास तो हमेशा ही इंशाल्लाह। होती है, मौजूद होती है, अब आप लोगों को पता नहीं होता या कुछ इस तरह से। अभी अरुवा मेरे साथ हमेशा रही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो हाँ, काफी सारी चीजें पढ़ चुकी हैं ये, वो भी आपकी क्लास से है वहां से, तो हमेशा रहती है मेरे साथ, अपनी क्लास भी कर रही है वहां से, लेक्चर भी सुनती है, टेस्ट भी दे रही हैं, और अभी फाइनल भी देंगी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, चीजें आती हैं। बहरहाल जी जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, ये तो सब अल्लाह ही गाइड करने वाले होते हैं, इंसान कुछ नहीं कर सकता। जी ये इस ठीक। क्लास में बिल्कुल। असल में मैं तो वही लेक्चर सुनती थी और फिर टेस्ट देती थी। ये आप हम्म वाली क्लास जो थी ये इसका मुझे इतना नहीं मैंने देखा, हम्म या वक्त नहीं मिल पाया, तो ये आज मैंने देखा लकीली। जज़ाकल्लाह खैर, आपने बड़ी हेल्प की। हम्म। और नहीं, मेरा ख्याल है कि आपका अच्छा, ताल्लुक लाहौर से कहाँ नहीं से है? मेरा कनाडा से है। अच्छा, अभी कनाडा में ही है। हाँ, जी अच्छा जी। अच्छा, तो आप माशाल्लाह। कनाडा में हैं, सुमेरा? नहीं, मैं तो इधर लाहौर में होती हूँ, अच्छा कनाडा अच्छा मेरी बहन होती है। अच्छा, सही है सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आजकल तो सब एक ही विलेज बन गए हैं, जी वो जैसे एक ही सफूरा सफूरा इकराम जो है वो मेरे टेस्ट चेक कर रही थी, उनसे राब्ता रहा। सफूर तो इकराम। आपके उन्होंने मुझसे ही जी ग्रामर पढ़ी है, उनको मैंने अलहुदा में पढ़ाई थी, और माशाल्लाह उसके बाद वो पढ़ाना, और उसने टॉप किया था अपनी क्लास में। अच्छा, आपका माशाल्लाह। ताल्लुक वहाँ कनाडा अल हुदा से भी है? हाँ, वहां से कनाडा अलहुदा से पढ़ी हुई है वो, मॉन्ट्रियल से। अच्छा, वहाँ एक अबीदा अबीदा मलिक थी जिन्होंने हिफ्स वगैरह भी किया था। मैं सबको तो नहीं तो जानती, जो मेरे ग्रुप्स में है क्लास में उनको ही जानती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक तो ठीक, अल्लाह सफूरा आपको तो खैर जज़ा मेरी खैर बहुत दे। क्लोज फ्रेंड भी है, माशाल्लाह मेरी स्टूडेंट भी है, और बड़ी इज्जत करती है, और बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। फिर ये फौजिया है, फिर अभी एक और सफूरा है जो भी मैं रिसेंटली कोर्स कर रही हूँ, सफूरा साले, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, वो नाम की भी अच्छा बरकत अच्छा, होती है। नहीं चलिए, आपसे आज हमने आप भी जुड़ जाएं तो आप भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अगला वाला पोर्शन थोड़ा मुश्किल है, तो जी, कॉन्सेप्ट मैं क्लियर होंगे इंशाल्लाह अब आपके साथ इसमें रहूंगी। एक्चुअल में मेरी अपनी कुरान क्लासेस मैं भी पढ़ाती हूँ, मेरा भी ताल्लुक अल हुदा से ही है। ना। अच्छा मैं शुरू में मॉडल टाउन की पहली स्टूडेंट हूँ अल हुदा की। अच्छा अच्छा। तो मंगल सोमवार मंगल 2 दिन मेरी जब आप अपनी क्लास पढ़ाती हैं तो होती आपको पूरे यकीन से पढ़ाना है ना, सही है ना आप, है। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। अपनी चीजें पुख्ता हो, खास तौर पे कुरान को समझने के लिए ग्रामर बहुत जरूरी होती है। जब मैं जी जी रिव्यू वगैरह करा रही थी, अभी कल भी मैंने सूरह किसका करवाया था, हाँ नहीं, हाँ वो भी करवाती हूँ, दूसरी चीजें नहीं, कल एक और था, तो बहरहाल वो बड़ा सही तरीके से चीजें, उसमें से क्वेश्चन, एक एक आयत में से क्वेश्चन बनाते हैं, करते हैं, रिव्यू करते हैं,
تو بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ یہ کو آپ کا سوری بات کاٹ رہی ہوں ڈیلی آپ کا یہ 3 بجے کا ہی ٹائم چلے میرا گا یہی ٹائم ہے، میرا یہی لنک ہے، ٹھیک ہے، جس کو جوائن کرنے آ جائے. اور ہر کلاس جو ہوتی ہے بہت بینیفیشل ہوتی ہے. کسی کلاس میں آپ کو یہ نہیں، جی اگر خاص طور پہ آپ گرامر پڑھ رہے ہیں تو وہ ہر جگہ تھوڑی 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 ان کی کلاس کے حساب سے بتائی جاتی ہے. صحیح ہے. ہاں جی جیسے آپ جزاک اللہ بس وہ میرا 2 دن کا چونکہ ٹائمنگ ہی یہی ہے پھر میں انشاءاللہ آپ دیکھتی ہوں مجھے کوئی میسج کیجیے گا، صورتحال میں آپ بنے کو گروپ میں ڈال دوں گی نا، تو پھر جیسے اروبا بھی ہیں تو پھر آپ کو بھی میسج آئے گا کلاس کا، تو پھر آپ آ جائیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. انشاءاللہ چلے تو جزاک اس اللہ کے بعد خیر اگر آپ بزی ہیں تو پھر ریکارڈنگ میں یوٹیوب پہ ڈال دیتی ہوں، وہاں سے آپ سن لیجیے گا. یہ آج کی ریکارڈنگ ہی ٹھیک ہے چلی جائے گی ابھی تھوڑی دیر میں، تو سب کو فائدہ چلیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے. جی جی بالکل بالکل سبحان جزاک اللہ اللہ خیر و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام جزاک ورحمۃ اللہ اللہ خیر. وبرکاتہ. استاذہ جزاک اللہ خیر کثیرا.